हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IHH PET IndustriesHelpingHands.com इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्रोग्राम। और आज जिस गेस्ट के साथ हमने इस प्रोग्राम को कैरी ऑन किया है वो है रोशन बागवार, जो करेंटली वर्क कर रहे हैं एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इन स्विगी। तो उनके साथ हमने डिस्कस किया है उनकी जर्नी फ्रॉम द स्कूलिंग डेज टू द प्लेसमेंट ड्राइव ट्रैकिंग ऑफ स्विगी, जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है फ्रॉम IIT इलाहाबाद इन IT ब्रांच। और उनके इस जर्नी में बहुत से अप एंड डाउन्स हैं और बहुत से मोटिवेशनल पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। कैसे कैंडिडेट मल्टीपल बैकलॉग्स के बाद भी कम बैक करने के साथ साथ आज एक बहुत ही हैंडसम सैलरी पैकेज में लाइक स्विगी में वर्क कर रहा है, आपको उनके एक्सपीरियंसेस इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। तो आज के इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट रोशन बागवार के साथ। तो वो सारे कैंडिडेट्स जो कि सॉफ्टवेयर फील्ड से बिलोंग करते हैं और टॉप MNCs के प्लेसमेंट ड्राइव्स को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो के पॉइंट्स उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप अपने क्वेरीज हमारे कमेंट सेक्शन में भी आस्क कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर पाए। Hello viewers, welcome to the platform of IHH PET IndustriesHelpingHands.com interview experience program, and today we have with us Roshan Bagwar, who is currently working as software development engineer in Swiggy. So he will be sharing his useful experiences which will be beneficial for you. So Roshan, let's begin with your brief introduction first. Yeah, so hello everyone. I'm Roshan Bagwar, and I graduated in 2021 from Indian Institute of Information Technology, Allahabad. I was doing my undergraduation from I'm a batch of 2017, so it's 2017 to 2021, and I did a 6 months of internship starting January 2028. So I did a 6 months of internship from Quantify, and then after completing my internship, I got a full-time offer from them. So starting July to December, so it's 5 to 6 months of full-time experience from Quantify, and then I applied in Swiggy off campus, and then I finally get to join Swiggy as a SD1 backend. Okay. Yeah. So your native town, please? I'm from Jharkhand basically. So Okay. there's a district called Gumla. So I'm from Okay. Jharkhand. Yeah. Okay. So, we will switch on to Hindi language too. Not a problem. Yeah, like we can have mix of both of them, like Hindi Yeah. as well as English, both works. Okay. So, Roshan, आपकी स्कूलिंग में वहीं से ही आपके नेटिव टाउन से? Yeah. So in Gumla only we have a Don Bosco school. So class 10th तक मेरी पढ़ाई Don Bosco से हुई. After completing my 10th from Don Bosco, I went to again ICSE board. There's a school called St. Xavier's School Doranda. It is in Ranchi, the capital city of Jharkhand. So for my 11th and 12th, I went to St. Xavier's School Doranda, and there only I did my preparation for JEE. और फिर उसके बाद में after class 12 I cleared JEE mains, and then I went to IIT Allahabad in 2017 actually. Yeah. So class 10th जो है वो I completed my class 10th in 2015. After that 16 and 17 class 11 and 12, and I gave JEE mains in 2017 only, and after clearing it I went to IIT Allahabad basically. So I didn't do any year drop. Actually, many of my friends did a year drop, and then they started preparing for JEE Advanced. बहुत सारे friends कोटा चले गए. You might be knowing about the quota, right, for JEE Mains and Advanced preparation के लिए. So IIT Allahabad was good. Okay, so there's a story behind it. Also, IIT Allahabad was not my first college actually. IIT Allahabad से पहले, I was new to all of this. इससे पहले, in my friend circle also, या फिर ऐसा कोई guidance नहीं मिला. तो
आफ्टर क्लास 12 जेई क्लियर हो गया और फिर आई डेंट हैव एनी आइडिया कि कौन से कॉलेज मतलब बेस्ट है एंड अबाउट द प्लेसमेंट्स और फिर स्टैटिस्टिक्स कौन से कॉलेज में जाना है कहाँ नहीं जाना है ऐसा कुछ आइडिया नहीं था. एवरीथिंग वाज न्यू टू मी. तो फिर I got a college. It was IIST Shibpur. It's in West Bengal. You might be knowing it. Yeah, it's in West Bengal. Yeah. Before IIST Shibpur, they used to call it Bengal Engineering College basically. तो वो अभी IIST Shibpur था. But then I also got computer science branch in that college. तो फिर वहाँ जाते हैं and admission हो जाता है and I think it was 1 month I guess. तो 1 महीने तक वहाँ पे थे. उसके बाद में आफ्टर गेटिंग इनटू द कॉलेज जोसा में एक और काउंसलिंग होता है, स्पेशल राउंड होता है वो बेसिकली. तो फ्रेंड्स से पता चला क्योंकि एवरीथिंग वाज न्यू टू मी और फिर ज्यादा कुछ पता नहीं था. बट देन बीइंग अराउंड विद द फ्रेंड्स पता चला कि ये स्पेशल राउंड करके होता है. तो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट और फिर अगेन गॉट सजेशंस फ्रॉम फ्रेंड्स ओनली कि IIIT इलाहाबाद इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस. तो IIIT इलाहाबाद भरे एंड देन आई गेट into IIIT इलाहाबाद 2017 में ही और फिर वहां से IIIT इलाहाबाद जाते हैं एंड yeah, so quite an experience it was after class 12. Okay, so switching up तभी से ही start कर चुके. Yeah, College days. yeah, kind of. Okay, तो means 10 से आपने प्रिपरेशन चालू कर दी थी. मतलब पहले से ही माइंडसेट सारा क्लियर था कि टेक्निकल बैकग्राउंड फील्ड में ही जाना है, मींस इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है आपको. Okay, being honest about it, I'm from I'm from Gumla in Jharkhand. तो इधर मतलब वैसा माहौल नहीं था. Like in Gumla, this is not a capital city, right? Capital city of Jharkhand is Ranchi. तो Gumla एक अलग डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है. Actually, I was also I have already spent 2 years in Ranchi. Okay. I have also done my master's from IIT Hyderabad. So I have also spent there my graduate 2 years. Yeah. तो रांची में क्या गए हम लोग वैसे मैक्सिमम टाइम तो धनबाद में ही गुजरा. हाँ, तो बताइए. तो इधर यहाँ गुमला में मतलब ऐसा माहौल नहीं था जेई एंड देन मेडिकल. तो फिर क्लास 10 तक ऐसा कुछ पता नहीं था. ऑल्दो टू बी ऑनेस्ट माय एकेडमिक्स हैव ऑलवेज बीन लाइक आई थिंक इट वाज गुड बिकॉज क्लास 9 तक I have always came first in my class. So I always used to my rank was used to be first or second. So first ही आते थे mostly. So academically I was good. पर फिर ऐसा कुछ था नहीं till class 9. In class 10 my rank in my school was third actually. First कोई और आ गया. तो हाँ, तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि जेई करना है, मेडिकल इंजीनियरिंग ऐसा कुछ था नहीं. पर एकेडमिकली अच्छा था, पर माइंड में था कि हाँ इंजीनियरिंग करना है. पर ऐसा कुछ पता नहीं था कि जेई होता है, जो इंटर जेई मेन जेई एडवांस होते हैं, ऐसा कुछ पता नहीं था. तो आफ्टर क्लास 10 संजीवी स्कूल डोरंडा आई वेंट टू रांची. तो वहां पे मतलब पता चला कि हाँ इंजीनियरिंग के लिए जेई मेंस एग्जाम होता है एंड देन मेडिकल के लिए नीट एग्जाम होते हैं और फिर कोचिंग वगैरह होते हैं. ऐसा गुमला में ऐसा कुछ माहौल था नहीं. बट देन व्हेन आई केम टू रांची आई सो द कंपटीशन पर फिर भी मतलब एकेडमिकली आई वाज गुड आई थिंक. तो क्लास 11 तक मैंने कोई ट्यूशन कोचिंग वगैरह करा नहीं. मतलब क्लास 11 तक आई यूज्ड टू मैनेज इट माई सेल्फ. ऑल्सो संजीवी स्कूल डोरंडा वाज एन ICSE बोर्ड. तो फिर उसमें थोड़ा सा मतलब करिकुलम चेंज हो जाता है. लाइक इट्स नॉट लाइक you have to you don't have to do the non schooling, you have to appear for the attendance mandatory होते हैं and rules काफी strict होते हैं. तो मतलब क्लास 11 तक खुद की पढ़ाई थी. मतलब ऐसा लगता था कि खुद से प्रिपेयर करेंगे एंड देन जेई मेंस क्लियर करना है. बट देन आफ्टर सीइंग द क्वेश्चंस, जेई मेंस के क्वेश्चन, जेई एडवांस के क्वेश्चन, फिजिक्स वाज द टफेस्ट वन. क्वेश्चन ही नहीं बनते थे. तो फिर डिसाइड करा कि नहीं मतलब 12 क्लास में करते हैं, मतलब ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह करते हैं. तो 1 साल की कोचिंग थी रांची में ही और 1 साल के लिए प्रिपरेशन करा था बाहर से. और फिर जेई क्लियर होता है एंड देन मतलब ऐसा बैकग्राउंड होता है मतलब
या तो आईआईटी शिवपुर में आपने एडमिशन ले लिया, मतलब वहाँ पे क्लास वगैरह ज्वाइन कर ली थी उस दौरान? हाँ, क्लास पहले ही मतलब स्विच कर लिया आपने? आईआईटी शिवपुर में ज्वाइन कर लिए थे, क्लासेस भी अटेंड करे थे, क्लासेस वर गुड एंड एवरीथिंग वाज गुड देयर आल्सो, कॉलेज वाज गुड एक्चुअली, फ्रेंड्स भी थे। पर यू नो अगेन 2017 में यू नो आई अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस और फिर क्लियर हो जाता है मतलब वन गो पे ही। तो काफी फ्रेंड्स थे मेरे, उन्होंने सजेस्ट करा कि लाइक there are better colleges than IIT Shivpur, like you can get better NITs or triple ITs are also there, triple IT Allahabad and all। तो उन्होंने बोला कि एक और स्पेशल राउंड होता है। अगेन स्पीकिंग स्पेशल राउंड वगैरह के बारे में कुछ आइडिया था नहीं, मतलब मेरे से पहले किसी ने अगेन फ्रेंड्स वगैरह का किसी का IIT या फिर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल पे हुआ नहीं था, तो किसी के सजेशंस नहीं थे और उतना मतलब आइडिया नहीं था। तो फ्रेंड्स से ही पता चलता है कि स्पेशल राउंड होते हैं and we can participate in that। I think somewhere around 1000 rupees वो लेते थे रजिस्ट्रेशन के, और फिर उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। एंड अगेन इट्स लाइक इट्स काउंसलिंग, आपके रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं, यू कैन अपग्रेड योर कॉलेज बेसिकली, तो वो होता है राइट। तो उसमें पार्टिसिपेट करा और फिर NIT सूरत एंड फिर अगेन NIT तिरची वगैरह एक आध दो कॉलेजेस भरे थे, बट देन ट्रिपल IIT इलाहाबाद वाज इन द थर्ड लिस्ट, तो फिर ट्रिपल IIT इलाहाबाद मिल जाता है। और फिर दोस्त बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं कि ट्रिपल IIT इलाहाबाद इज अ रियली गुड कॉलेज, और फिर प्लेसमेंट वगैरह भी काफी अच्छे होते हैं, वहाँ पे कोडिंग का अच्छा माहौल होता है। वहाँ पे इन ट्रिपल IIT इलाहाबाद वी हैव ओनली 2 ब्रांच, IT इज देयर एंड देन EC इज देयर फॉर बीटेक। या कंप्यूटर साइंस नहीं होते, बट देन IT इन ट्रिपल IIT इज Triple IT Allahabad is similar to CS in other colleges. They have every standard, right? Right. तो Triple IT Allahabad की जो IT है, that is the everyone like Triple IT Allahabad is known for coding culture, right? Everyone, the students in Triple IT Allahabad they used to do coding and all. ये माहौल है कॉलेज का। तो फ्रेंड्स बोले कि अच्छा कॉलेज है, यहाँ एडमिशन ले लो। तो फिर ट्रिपल IIT इलाहाबाद में एडमिशन हो जाता है एंड फिर द जर्नी बिगिंस फ्रॉम ट्रिपल IIT इलाहाबाद से। ओके, दैट्स इट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद योर एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट ईयर। हाउ वाज दैट बेसिकली? मींस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग पहले की माइंडसेट आपका था कि प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही वहां पर प्रिपरेशन कर लेंगे, स्टडी कैसे अप्रोच नहीं मिलती स्टडी आपकी ग्रेजुएशन? ओके, या सो ट्रिपल IIT इलाहाबाद में कुछ बहुत से कैंडिडेट्स बात है कि स्कूल डेज बताते हैं कि फर्स्ट ईयर तो नहीं, जिसमें तो चिल करेंगे फर्स्ट ईयर तो, एंड देन वी विल गियर अप। या अगेन ट्रिपल IIT इलाहाबाद में इट इज अ रोलर कोस्टर राइड आई वुड से, क्योंकि क्लास 10 तक 12 तक एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी थी मतलब मेरी। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में ये माइंडसेट हो जाता है कि नहीं, अब थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई साइड में थोड़ा चिल करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में वही हुआ, चिल किए, मतलब जितने भी वो होते हैं ना पैशन हॉबीज, मतलब अलग अलग सोसाइटी ज्वाइन करने आपको, सिंगिंग, डांसिंग या फिर ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जो भी है आपको, तो वो सारी किए वो भी, मतलब पढ़ाई या तो फिर या सो एक्चुअली ऐसा था कि एडमिशन होने के बाद में 1 महीने तक आई वाज इन IIT शिवपुर, राइट। तो ट्रिपल IIT इलाहाबाद में एडमिशन होने के बाद में समवेयर अराउंड 1 से 2 हफ्ते के बाद में मतलब सोसाइटीज वगैरह का ऑडिशन हो जाते हैं। तो सिंगिंग के, डांसिंग के और फिर जितने भी क्लब्स होते हैं एक्टिंग वगैरह के, सारे क्लब्स के ऑडिशन हो चुके थे। द न्यू स्टूडेंट्स दैट आर गेटिंग इनटू द कॉलेज, वो जा करके फिर ऑडिशन देने होते हैं, और फिर बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आपको जिस भी क्लब में जाना है आप चले जाओ। तो फिर आई केम इनटू ट्रिपल IIT इलाहाबाद अराउंड वन मंथ लेटर, राइट, 1 महीने बाद स्पेशल राउंड पे। तो जब तक मैं आता हूँ ट्रिपल IIT इलाहाबाद में सारे क्लब्स के ऑडिशन हुए रहते हैं, मतलब एंट्री क्लोज हो चुका था बेसिकली। फिर भी मुझे जाना था कि सिंगिंग करने है, इंटरेस्ट था, सिंगिंग करना है, और फिर डांस वगैरह में भी इंटरेस्ट था, मतलब वो अंदर था पहले से ही, पर वो पढ़ाई वढ़ाई की वजह से कर नहीं पाते थे। तो ट्रिपल IIT इलाहाबाद में जाने के बाद में आई थॉट ऑफ गिविंग इट अ चांस। मैंने बोला कि चलो ऑडिशन दे देते हैं, मतलब
मैंने उनको बोला कि इसमें इंटरेस्ट है। वैसे तो उस टाइम पे इनटेक नहीं हो रहा था, पर फिर भी बात किया क्लब मेंबर्स लोगों से, और फिर जाके सिंगिंग के लिए ऑडिशन दिए थे। बट देन आई कुडंट मेक इट। मेरा वहाँ पे होता नहीं, मतलब माई परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू द मार्क। और फिर तो वहाँ पे होता नहीं बेसिकली। और फिर स्पोर्ट्स क्लब वगैरह भी काफी भर चुके थे, मतलब क्रिकेट वगैरह के ऑलरेडी टीम बन चुके थे, तो वहाँ पे जा नहीं पाया। ऑल्दो क्रिकेट हमेशा से खेलते आए हैं, तो क्रिकेट इज वन ऑफ द स्पोर्ट्स आई रियली लाइक, खेलते थे। बट देन 11-12 में पढ़ाई की वजह से क्रिकेट छूट जाती है, और फिर कॉलेज में जाने के बाद में अगेन क्लब भर चुके थे, तो वहाँ पे एडमिशन होता नहीं, पर फिर भी फ्रेंड्स लोगों के साथ में खेल लेते थे। हाँ, राइट राइट, हाँ। पर फिर अगेन वहाँ पे स्विमिंग पूल था, तो आई एम ऑलवेज काइंड ऑफ स्टूडेंट, आई वुड से, जो आई लाइक बीइंग फिट एंड एक्टिव। तो स्विमिंग ज्वाइन किए स्विमिंग पूल में। स्विमिंग मुझे पहले से आती थी, तो वहाँ पे स्विमिंग करते थे। और फिर कॉलेज में जिम था, तो सुबह शाम जिम ज्वाइन किए थे। और फिर डाइट मेंटेन का करने का कोशिश करते थे, मतलब डाइट ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में डाइट वाज गुड, खाना अच्छा था, और फिर बाहर से भी खाते थे। तो वर्कआउट, जिम, और फिर स्विमिंग, और फिर ये सारी चलती रहती थी। तो पढ़ाई के लिए कॉलेज जाते थे, और फिर पढ़ाई वाज आल्सो गुड, बट मोर इंटरेस्ट, लाइक आई वाज मोर फोकस्ड इनटू दिस hobbies and interests and all. Yeah, right. Okay. Okay. So what was your basically approach for your studies in those days? So one more story is there. Like I would want to share it, क्योंकि that's a really important part of my journey, my academic journey. So the story is something like this कि मैंने बताया कि वन गो में मेरा जेई क्लियर हो गया था, राइट, इन 2017 ओनली। तो फिर फ्रेंड्स ने ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में भी फ्रेंड्स, मतलब पता चला कि काफी लोग जो है वो एक ईयर ड्रॉप करके आए हुए हैं, ठीक है। और काफी लोग आईआईटी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने सोचा कि why should we not give it a chance ना, मतलब we have one more year अपने पास में, तो फिर से प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन, लाइक फॉर जेई आफ्टर गेटिंग इनटू द कॉलेज। मैंने बोला कि रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि अपने पास में टाइम था पर प्रिपेयर नहीं किए। हाँ, सोचे एटलीस्ट प्रिपेयर तो कर ही ले, ये रिग्रेट हाँ, राइट, सोचा तो प्रिपेयर नहीं किया। या तो व्हाट आई डिड वाज, फर्स्ट ईयर में ही, मतलब कुछ टाइम तक तो ये इंटरेस्ट हॉबीज वगैरह चले, बट देन कुछ टाइम के बाद में फिर से सीरियस हो गए प्रिपरेशन के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिर से फुल ऑन प्रिपरेशन जैसे जेई के टाइम पे करते थे। और फिर करते करते बीच में ऐसा टाइम आ गया कि मतलब दिमाग में ये था कि नहीं, मतलब इस बार भी क्लियर करना ही है, मतलब आई वाज रियली इनटू इट, मतलब। तो ऐसा हो गया कि कॉलेज का जो पढ़ाई था वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मतलब आई डिडंट अटेंड लेक्चर्स, मैंने क्लास नहीं करा, मैंने अटेंडेंस नहीं करी, ठीक है। और फिर ये प्रॉब्लम हो गया, मतलब कॉलेज का पढ़ाई पूरा डाउन था, एंड आई वाज टोटली फोकस्ड इनटू जेई प्रिपरेशन। और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि इधर सेमेस्टर्स के एग्जाम होते हैं कॉलेज में, तो सेमेस्टर्स के एग्जाम सारे प्रॉब्लम्स हो गए, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू क्लियर देम। और इधर बैकलॉग्स लग जाते हैं, ठीक है। इधर बैकलॉग्स लग जाते हैं, एंड देन जेई का टाइम आता है, तो जेई देते हैं फिर से 2018 आई गेस इट वाज, तो उसमें जेई देते हैं। और फिर आई डोंट नो, पर फिर आई वाज नॉट इवन, लाइक आई डिडंट इवन क्लियर द जेई भी नहीं होता, ठीक है। इधर कॉलेज का पढ़ाई भी पूरा, क्योंकि कॉलेज की थोड़ी डिस्टर्बेंस के कारण, या क्योंकि आप कभी भी ना, राइट, यू कैंट हैव बोथ योर, वो कहते हैं ना, दोनों नाव पे पैर नहीं रख सकते, या तो इधर या तो इधर। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि राइट, तो आई वाज इन कॉलेज, और मैंने कॉलेज के क्लासेस अटेंड नहीं करे, एंड आई वाज आल्सो, तो मतलब आई डोंट नो, ऐसा मेरे साथ हुआ, आई वुड से फेट, किस्मत, जो भी बोलो आप, पर ऐसा हुआ कि कॉलेज का भी पढ़ाई गया, एंड इधर जेई भी, माय परफॉर्मेंस वाज नॉट रियली गुड, जो मुझे अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते, मतलब ट्रिपल आईटी इलाहाबाद वाज द बेस्ट वन जो मैं कर सकता था उस टाइम पे। तो इट वाज अ टोटल फेलियर बेसिकली, या टोटल फेलियर। आई वाज आई वाज होपलेस, आई वाज डिससैटिस्फाइड, पेरेंट्स भी But you must have done something,
पड़ा. You must have done some great kind of hard work because right now you are currently working in Yeah. which you have converted this Yeah, failure into a setbacks, great yeah. success, right? That will play a major role for Yeah, the yeah. students who will be watching. तो फिर as I said, it was quite a journey actually, lots of failures and then मतलब काफी सारे उतार चढ़ाव हुए. तो फिर ऐसा होता है कि अब इंटरेस्टिंग रहेगा आपने कैसे मतलब cope up या किया? राइट जो कमबैक हुआ ना वो हाँ. राइट. तो मतलब थोड़ा सा मतलब पोज हुआ इधर बैकलॉग से अपने मतलब काफी मैं problems था, like, इसीलिए ना फर्स्ट ईयर के लिए अलग से आपसे पूछा क्योंकि फर्स्ट ईयर या में लोग एक्सपेरिमेंट्स करते ही हैं. या फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट करते ही हैं क्या कुछ अलग या करना है. ओके हाँ, तो अब आपका अप्रोच अब कैसा आपने चेंज किया वो बेसिकली बताइए. तो थोड़ा सा पोज हुआ कॉलेज में, मतलब एकेडमिक्स कॉलेज में भी, क्योंकि काफी कोई क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे थे. इधर का पूरा छूट चुका था. आई वाज टोटली फोकस्ड इनटू जेई साइड. तो फिर इधर काफी चैलेंजेस थे, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा. अब उधर फेलियर हुआ तो अब कुछ नहीं करना, कॉलेज क्लासेस अटेंड करने हैं, बैकलॉग है अपने, ठीक है, मतलब बैकलॉग्स भी क्लियर करने हैं. तो क्लासेस अटेंड रेगुलर करना स्टार्ट हुआ, क्लासेस अटेंड करते थे एंड पढ़ाई में फोकस कर दिया, क्योंकि उधर अगेन मतलब इंटरेस्ट हॉबीज वाला चीज तो छूट ही गया था. इधर पूरा पढ़ाई में फिर से फोकस हो गए. और फिर सीजीपीए का अलग हो रखा है, मतलब सीजीपीए पूरा डाउन है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इधर पढ़ाई लिखाई गड़बड़ हो गया. सीजीपीए पूरा डाउन चल रहा है. फर्स्ट ईयर में मींस इंटरेस्ट कहीं और ही था, एक तो हॉबीज Right. एंड देन फर्दर अटेम्प्ट्स फॉर द जेई. या तो ऐसा हुआ. सीजीपीए भी काफी गड़बड़ चल रहा था और फिर बैकलॉग्स भी थे. क्लासेस अटेंड करे रेगुलरली. और फिर तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, यू डू बेटर. आपके पास जो भी सेमेस्टर्स बाकी है उसमें यू हैव टू डू बेटर एंड देन यू हैव टू मेक इट अप फॉर द सीजीपीए. मतलब तब तक पता चल चुका था कि अगर अच्छे प्लेसमेंट्स लेने हैं तो यू हैव टू बी 7 से ऊपर होना चाहिए आपका सीजीपीए, अदरवाइज या Otherwise, some MNCs do not let you to attempt their recruitment drive. That's right. Okay, Right. तो हम कहाँ पर थे? आपको we कैसे were लगे discussing थे? about the comeback basically. Come back, yes. Yeah. Okay, so I'm having some doubts. I don't know we should discuss it or not, क्योंकि पर हाँ मतलब बैकलॉग्स काफी थे, like you can put this, बहुत ज्यादा बैकलॉग्स थे. और फिर मेरा कमबैक स्टार्ट होता है, like I go to I attend the classes. पढ़ाई में फोकस हो गया और फिर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एग्जाम्स एंड ऑल. तो फिर ऐसे चलता है. आई एम नॉट श्योर, लाइक मुझे अभी वो देखना पड़ेगा जैसे मार्कशीट, आई डोंट नो, ट्रांसक्रिप्ट. पर सेमेस्टर 1 में भी समवेयर अराउंड 6 का सीजीपीए था. सेमेस्टर 2 में भी वही था 6.5. सेमेस्टर 3 में भी यही चल रहा था. लाइक बैकग्राउंड में अगेन बैकलॉग है ही, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि बैकलॉग्स क्लियर करने हैं. हाँ, तो सीजीपीए काफी गंदा चल रहा था और फिर ऐसा चलता गया. फिर आगे तो बस पढ़ाई ही हुआ. लाइक आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट टू क्लियर द बैकलॉग टिल देन मेक माय सीजीपीए बेटर. तो फिर ऐसा होता है एंड देन आई एम गिविंग माय बेस्ट. और फिर प्लेसमेंट लाइक 1 साल पहले होता है टेंथ के बाद में, राइट? मतलब आप थर्ड ईयर में होते हो या तो आप थर्ड ईयर में होते हो और फिर आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होता है. तो सेम स्टोरी, ट्रिपल आईटी अलावा में प्लेसमेंट होता है. आई एम फ्रॉम 2021 बैच और फिर 2020 में प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं. और उस टाइम पे मेरे सीजीपीए समवेयर अराउंड 6.8 चल रहे थे, नॉट इवन 7, राइट, नॉट इवन 7. तो ऐसा था कि आई वुड नॉट से कि मैं ब्रैग कर रहा हूँ लाइक अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट ब्रैगिंग इट, या फिर मैं कुछ भी वैसा बोलूंगा नहीं, लाइक आई एम रियली वैसा नहीं, लाइक आई एम वेरी नॉर्मल, वेरी एवरेज, ठीक है, वेरी एवरेज. पर फिर भी लाइक मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरा कोडिंग जो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्योंकि आप आईटी ब्रांच से हो तो आपको कोडिंग ही करना पड़ता है, ठीक है. तो माय कोडिंग वाज गुड एंड बिलो गुड. बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं था,
ठीक तो था। एवरेज बट आप कॉन्फिडेंट थे कि आप इसको मतलब एक लेवल तक अच्छे खासे लेवल तक इंप्रूव कर सकते हैं। हाँ, मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे मतलब ठीक ठाक कंपनीज मिल सकती थी, मुझे ऐसा फील होता था, मतलब उतना लेवल का कोडिंग था मेरे पास में, लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स was good. Like you would be surprised to know कि क्योंकि I was from ICSE board again, class 10th मेरा डॉन बॉस्को से था, तो that was ICSE board. तो क्लास 9 से ही हमारा ICSE बोर्ड में जावा स्टार्ट हो जाता है बेसिकली, तो जावा लैंग्वेज। हाँ, तो क्लास 9 से जावा स्टार्ट करा, क्लास 9 पढ़े जावा, क्लास 10 पढ़े जावा, ठीक है। और फिर अगेन संजय जेवियर्स स्कूल डोरंडा रांची में अगेन ICSE बोर्ड, तो क्लास 11 जावा, क्लास 12 जावा। तो क्लास 11-12 में अगेन थोड़े बहुत डेटा स्ट्रक्चर्स का मतलब आई वाज काइंड ऑफ हैविंग अ व्यू कि हाँ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, एरे लिंक लिस्ट होते हैं, ट्रीज वगैरह, पर बहुत ही बेसिक। तो जावा वगैरह काफी पहले से पढ़ रखा था, थोड़ा बहुत ऐसे कोडिंग आती थी। और अगेन यू वुड बी सरप्राइज टू नो क्लास 10 में कंप्यूटर साइंस में इतना ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट था मेरा कि क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम्स में 100 में से आई थिंक 97 आते थे। आई वुड हैव टू लुक इनटू द मार्कशीट, पर फिर 100 में 97 आया था मेरा। एक कीवर्ड था जिसकी वजह से आई डिडंट रिमेम्बर दैट कीवर्ड, और फिर बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर या फिर 3 नंबर कट जाते, तो 97 आते। और कंप्यूटर साइंस में या जावा ओके हाँ अच्छा तो क्लास 9-10 में क्लास 9-10 में कंप्यूटर साइंस था, और आई डोंट नो मतलब काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। तो फिर एज अ रिजल्ट अच्छे नंबर आ जाते हैं। व्हेन आई वाज इन क्लास 12, आउट ऑफ ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे सब्जेक्ट अगर आप कंसिडर कर लो, कंप्यूटर साइंस में द हाईएस्ट मार्क्स। आई डोंट नो अगेन द नंबर, आई वुड हैव टू लुक इनटू द मार्कशीट, पर सबसे हाईएस्ट मार्क्स कंप्यूटर साइंस में थे। तो ठीक था, मतलब इंटरेस्ट था शुरू से ही, तो ऐसा होता है। और फिर वेर भी आई फ्लो से मतलब कहाँ थे, हाँ मतलब ऐसा है कि मुझे कॉन्फिडेंट था अंदर से कि ठीक ठाक कंपनीज तो मिल जाएंगे प्लेसमेंट में, ठीक है, क्योंकि कोडिंग ठीक ठाक थी। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छा था, पर ठीक ठाक था, कोडिंग था, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स भी करे थे, मतलब प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन किए थे, ठीक है, वो सारा चीज। तो फिर ऐसा होता है कि जब प्लेसमेंट स्टार्ट होता है ना, तो अगेन मेरा 6.8 से जीपीए होता है। तो जो अच्छी कंपनीज होती है, जो मतलब थोड़ी अच्छी कंपनीज होती है, उनका मतलब ये एक तरह से थ्रेशोल्ड हो जाता है कि 7 से ऊपर वाले कैंडिडेट्स लेने, मतलब उनको अलाउ करने, 7 से जीपीए से नीचे वाले मतलब नहीं अलाउ करने, मतलब ऐसा हो जाता है। तो टॉकिंग अबाउट द स्टैटिस्टिक्स एंड फिर द कंपनी नेम्स, कॉलेज में अमेजोन आते हैं, मतलब अमेजोन आती है पहले में ही। और फिर आई रिमेम्बर कि उसमें सीजीपीए क्राइटेरिया नहीं थी, मतलब नो सीजीपीए क्राइटेरिया। तो आई वाज हैप्पी कि चलो कम से कम, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी कंपनीज आई, अच्छी कंपनीज आई, जो पहले मतलब अच्छी कंपनीज इन द सेंस उनका पैकेज ऑफरिंग जो होता था ना वो ज्यादा होता था, मतलब 30-40 ऐसे करके सीटीसी। तो उन सारी कंपनीज में वो पहले ही मतलब थ्रेशोल्ड सेट कर देते थे कि 7 या फिर 7.5 सीजीपीए या फिर 8 सीजीपीए के ऊपर वाले ही कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, मतलब दे विल बी सिटिंग फॉर द प्लेसमेंट्स। तो इस वजह से मुझे ऐसा फील होता था कि लो सीजीपीए की वजह से रेस में तो मैं पहले ही मतलब ट्रैक से बाहर हो जा रहा हूँ, मतलब तो मुझे ऐसा फील होता था। तो अमेजोन आई एंड आई वाज हैप्पी क्योंकि उन्होंने सीजीपीए क्राइटेरिया कुछ रखा नहीं था, तो आई वाज हैप्पी कि चलो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिला। तो अमेजोन इंटर्नशिप एंड फुल टाइम ऑफर के साथ में आई थी। एंड इफ आई रिमेम्बर कोडिंग टेस्ट में उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे। अमेजोन का मुझे याद है क्योंकि इंटरेस्टिंग था। तो एक क्वेश्चन बाइनरी सर्च से था जो मैंने कर लिया था, मतलब एक होता है लाइक द इंजीनियरिंग फोक्स, द कंप्यूटर साइंस वुड बी नोइंग, स्टूडेंट्स वुड बी नोइंग कि वी हैव अ मैट्रिक्स, और फिर उसमें सर्च करना होता है, बेसिकली बाइनरी सर्च लगाना पड़ता है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो लीड कोड का क्वेश्चन है, वो मैंने कर दिया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन होता है अगेन द स्टूडेंट्स विल बी व्यूइंग, मैं उसको एक रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ कि लीड कोड पे एक मस्ट डू तो नहीं, क्या कहते हैं उसे, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है, लीड कोड पे है। तो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मस्ट डू मतलब करना ही करना होता है, मतलब अगर आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो एक सिलेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उससे बहुत बार पूछे जाते हैं बेसिकली। तो इट्स लाइक जेई के टाइम पे आपको एनसीईआरटी करना होता है ना,
सेम इज द केस फॉर प्लेसमेंट्स. आपको टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस करने ही होते लीड कोड के. ओके, तो आपने इस प्लेटफॉर्म से बेसिकली प्रिपरेशन की? हाँ, लीड कोड से करा एंड गिग फॉर गिग से करा, दोनों से करे थे. अगेन अगर बात करें तो फिर क्या कहते हैं उसे, इंटरव्यू बिट भी है, दैट ऑल्सो हैज गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो इंटरव्यू बिट से भी करा था थोड़े बहुत, पर मेनली लीड कोड से करा था और गिग फॉर गिग से करा था. तो लीड कोड पे before coming to your placement parts, could you share the projects that you've done during the race? ओके. तो प्रोजेक्ट्स काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे. मतलब जो मेरे रेज्यूमे में मेंशन किए हुए हैं वो, एक तो सबसे पहला मतलब व्हेन आई वाज इन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर आई वुड से, एक डीबीएमएस एक प्रोजेक्ट था, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उसमें हमने करा था तो उसमें हमने एक जीयूआई बनाया था जावा को यूज करके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाया था, और बैक एंड में मतलब माइस्क्यूएल यूज किया था. तो उसमें सिंपल डेटाबेस मैनेजमेंट होता था. उसमें यू कैन ऐड बुक्स, यू कैन डिलीट बुक्स. आपको एडमिन एक्सेस है तो फिर आप ऐड डिलीट मॉडिफाई सारे कर सकते हो. बेसिकली उसमें ये था कि एक जेडीबीसी होता है. जेडीबीसी जो है वो जावा एंड माइस्क्यूएल के बीच में कनेक्शन बनाता है. बेसिकली लाइक यू हैव टू यूज जावा और फिर you have to connect it, you have to connect the MySQL in the backend. वो होता है. तो ये एक प्रोजेक्ट था जो मैंने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. उसके बाद में इन 6th सेमेस्टर एक प्रोजेक्ट था ह्यूमन फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, फेस डिटेक्शन सिस्टम. एक्चुअली रिकॉग्निशन नहीं था. तो अगर कैमरा फ्रेम में आपका फेस है तो फिर उसको डिटेक्ट करेंगे यूजिंग मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग यूज होता है. आई विल कम टू दैट लेटर. पर फिर जैसे कि इफ यू आर देयर इन द फ्रेम, कैमरा फ्रेम, तो फिर ह्यूमन फेस डिटेक्ट करके उसके फेस के चारों ओर रेक्टेंगल बना देगा एंड इट विल से कि हाँ दिस इज द ह्यूमन फेस. तो वो एक प्रोजेक्ट था. इसमें हमने पाइथन यूज करा था. अगेन जावा तो पहले से ही था. ड्यूरिंग द कोर्स माय करिकुलम इन कॉलेज मैंने पाइथन सीख रखा था, क्योंकि पाइथन वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड इट्स अ गुड लैंग्वेज एक्चुअली. हाँ, काफी आसान हो जाता है काफी सारी चीजों के लिए. तो पाइथन सीखे एंड देन पाइथन पे एक प्रोजेक्ट किए, दैट वाज ह्यूमन फेस डिटेक्शन. उसमें एक लाइब्रेरी होती है ओपनसीवी, तो उसको यूज करके बनाया. लाइब्रेरीज पहले से राइट. कॉलेज स्टूडेंट्स माइट बी नोइंग इट. ओपनसीवी काफी पावरफुल लाइब्रेरी है, तो उसको यूज करके बनाए थे हमने. तो वो एक प्रोजेक्ट था. एक और अच्छा प्रोजेक्ट था जो मुझे याद है, इट वाज मोबाइल रिकमेंडेशन सिस्टम. ठीक है. वो प्रोजेक्ट कुछ ऐसा था. उसमें हमने मशीन लर्निंग यूज किया था. KNN एल्गोरिदम होता है. तो उसमें ऐसा होता है कि बैक एंड में अगेन माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज किया था. तो उसमें स्मार्टफोन्स के डेटा उसमें थे, मतलब ठीक है. आपको उसके फ्रंट एंड में हमने GUI अगेन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना रखा था. उसमें एक प्राइस रेंज होगा कि आपको किस प्राइस रेंज में फोन चाहिए, स्मार्टफोन. दूसरा आपको मतलब स्मार्टफोन किसके लिए यूज करना है, आपको फोटोग्राफी करना है, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करना है, या फिर आपको गेम खेलना है. तो उस बेसिस पे तो यूजर से एक सेट ऑफ इनपुट लेते थे और फिर बेस्ड ऑन दैट हम फोन रिकमेंड करते थे कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से 4-5 बेस्ट फोन्स ये सारे हैं जो आप ले सकते हैं. तो ये एक प्रोजेक्ट था. इसमें मशीन लर्निंग यूज हुआ था. K नियरेस्ट नेबर्स करके होता है, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड दे माइट बी नोइंग इट. तो ये हमने बनाया था. ये मुझे अच्छा लगा कि ये रेज्यूमे मेंशन कर सकते हैं. तो अगेन ये प्रोजेक्ट मेंशन किया हुआ था. टोटल 3 या 4 प्रोजेक्ट मेंशन किए थे. अपने कॉलेज प्लेसमेंट के लिए तो 3 प्रोजेक्ट मेंशन किए थे, बट देन इधर इंटर्नशिप हुआ तो फिर अगेन आई डिड 1 or 2 प्रोजेक्ट्स जो मैंने अभी रेज्यूमे में मेंशन कर रखे हैं. पर कॉलेज प्लेसमेंट के टाइम पे 3 प्रोजेक्ट मेंशन किए हुए थे. अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो प्लेसमेंट्स में भी सबसे पहले आपने अमेज़न में ही आपने मतलब रिक्रूटमेंट किया, राइट? तो क्योंकि उससे पहले अच्छी कंपनीज थी, उनका थ्रेशोल्ड हुआ करती थी कि 7 से ऊपर वाले को ही बैठना है. अमेज़न आती है, राइट. अमेज़न आती है और फिर अमेज़न में CGPA क्राइटेरिया होती नहीं है. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वो हो गया, आपको मतलब मैट्रिक्स में सर्च करना है, बाइनरी सर्च लगाना है. वो काफी अमेज़न के राउट्स कैसे थे? सबसे पहले असेसमेंट टेस्ट. हाँ, पहले ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, असेसमेंट. आपको उसमें मतलब प्योरली टेक्निकल. 1 घंटा का टाइम है, 60 मिनट्स ड्यूरेशन. आपके पास 2 कोडिंग क्वेश्चंस है, आप दोनों क्वेश्चंस बना लो, आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे. For the interview rounds. For the interview rounds, yeah. How many interview rounds were there?
ओके, सो आई थिंक वन ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट इज देयर, ठीक है, और फिर आप अगर वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको दो टेक्निकल राउंड्स होते हैं। टेक्निकल राउंड वन, सारे के सारे एलिमिनेशन राउंड, टेक्निकल राउंड वन होता है, उसके बाद में टेक्निकल राउंड टू, दोनों टेक्निकल, उसके बाद में एक HR या फिर मैनेजरियल राउंड होता है, लास्ट राउंड। तो इन टोटल 4 राउंड आई वुड से, पहला कोडिंग टेस्ट हो जाता है, असेसमेंट, दो टेक्निकल राउंड्स एंड लास्ट जो है मैनेजरियल। या क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से बेसिकली थे आपके जो असेसमेंट टेस्ट में थे, जो कोडिंग प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस? प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस अगेन, जैसे कि कैंपस प्लेसमेंट के टाइम पे आई वाज ओनली पार्ट ऑफ द फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट, राइट, क्योंकि उसके बाद में मेरा नहीं होता है, जो मैं भी बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन वो था बाइनरी सर्च मैट्रिक्स में से। तो बाइनरी सर्च कंप्यूटर साइंस, इट्स अ वेरी ट्रिवियल क्वेश्चन, दे वुड नो। सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो लिंक लिस्ट से होता है, ठीक है, लिंक लिस्ट से। तो लिंक लिस्ट से मैं भी बताने वाला हूँ कि इधर जो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं ना लीड कोड के, तो उसमें टोटल 3 सेक्शन है, ठीक है। एक इजी सेक्शन है, मीडियम सेक्शन एंड हार्ड सेक्शन। तो अगर आपको प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन बनाने, इजी मीडियम हार्ड सारे। तो मेरे केस में क्या था कि मैंने इजी सेक्शन के सारे कर रखे थे, एरे से किए थे क्वेश्चंस, लिंक लिस्ट, ठीक है, स्ट्रिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ, सारे क्वेश्चंस कर रखे थे इजी से। मीडियम सेक्शन से भी सारे कर रखे थे। अब हार्ड सेक्शन से किए नहीं थे, हार्ड सेक्शन से, ठीक है, क्वेश्चंस किए नहीं थे। और फिर अमेजोन का प्लेसमेंट होता है, ऑनलाइन असेसमेंट, पहला बाइनरी सर्च क्वेश्चन से आया था, मैंने उसे कर दिया। सेकंड क्वेश्चन जो है लिंक लिस्ट था, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन से लीड कोड का सेम क्वेश्चन, एंड दैट वाज फ्रॉम द हार्ड सेक्शन ऑफ लिंक लिस्ट, जो मैंने नहीं करे थे। हाँ, या हार्ड सेक्शन मैंने नहीं करे। तो एडवाइस ये रहेगा कि अगर आपको प्लेसमेंट के लिए करना है, सबसे पहले मस्ट डू क्वेश्चन, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लीड कोड से सारे कर लो, क्योंकि वो एकदम स्टैंडर्ड है। हाँ, तो लिंक लिस्ट से हार्ड सेक्शन से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन वो था, मतलब एक लिंक लिस्ट है, उसको कॉपी करना होता है, पॉइंटर्स थर्ड पॉइंटर होते हैं। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स वुड बी नोइंग इट, जो कोडिंग करते हैं। आप हार्ड सेक्शन पे चले जाओ, टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिंक लिस्ट का एक क्वेश्चन है जिसमें लिंक लिस्ट को कॉपी करना होता है बेसिकली। वो क्वेश्चंस मैंने पहले करे नहीं थे, तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मेरा अमेज़न में होता नहीं। ओके, सो हार्ड सेक्शन बेसिकली करना ही है। या हार्ड एंड मीडियम करेक्ट। ओके, तो अब इससे पहले आई थिंक क्वांटिफाई में भी थे, क्वांटिफाई में थे, वी वुड कम टू दैट। क्वांटिफाई में ऑन कैंपस प्लेसमेंट ही हुआ था। या राइट, क्वांटिफाई में ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। ओके, सो अभी प्लेसमेंट में आगे बढ़ते हैं। देयर इज अगेन इंटरेस्टिंग स्टोरी। काफी सारी कंपनीज आती है, बहुतों के सीजीपीए क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब 7 के ऊपर होती है, तो फिर उसे बैठ नहीं पाते हैं। और फिर मतलब ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में कंपनीज ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में आती है, मतलब सबसे हाईएस्ट पैकेज पहले, उसके बाद लोएस्ट पैकेज, मतलब कम पैकेज डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिकली। तो फिर पैकेज डिक्रीज होने लगा और फिर उनके थ्रेशोल्ड भी डिक्रीज होने लगे, मतलब 7 से ऊपर वाले, फिर धीरे धीरे 6.5 से ऊपर वाले। तो काफी कंपनीज में अपीयर हुए, बट आई वाज नॉट एबल टू क्रैक द ऑनलाइन टेस्ट ओनली, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट क्रैक ही नहीं होता था। फेलियर्स, और फिर आप फिर से वापस आके कोडिंग करो, ठीक है, और फिर नेक्स्ट कंपनी, फिर फेलियर। तो ये सारा चल ही रहा था। और फिर एक टाइम आता है जब मतलब 6.5 का वो लगता है, मतलब थ्रेशोल्ड लगता है, जिसमें आई वाज एलिजिबल। क्वांटिफाई आती है, 6.5 वाज द थ्रेशोल्ड, 6.5 से ऊपर वाले सारे बैठ सकते हैं क्वांटिफाई। और उनके पैकेजेस जो भी होते हैं, मतलब आई वुड नॉट गो इनटू द फिगर्स एंड ऑल, पर क्वांटिफाई आती है। और फिर इससे पहले मेरा कभी शॉर्टलिस्ट हुआ नहीं था, मतलब क्वांटिफाई से पहले कोई भी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ नहीं था, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो पहला ऑनलाइन टेस्ट उनका शॉर्टलिस्ट मतलब क्लियर हो जाता था, शॉर्टलिस्ट होते थे, और फिर इंटरव्यू राउंड्स में मतलब रिजेक्शंस होते थे, मतलब ऐसा इंटरव्यू राउंड्स में रिजेक्ट हो जाते थे। मेरे केस में ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे। क्वांटिफाई आती है, ऑनलाइन टेस्ट निकल जाता है, ये भी प्योर टेक्निकल कोडिंग ही रहता है बेसिकली। कंप्यूटर साइंस में यही है, पहला कोडिंग ही रहता है।
आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट एग्जैक्टली, पर 2 और 3 क्वेश्चन ही थे, मतलब 1 आवर का ड्यूरेशन था। और क्वेश्चन जो है ना वो हार्ड लेवल के नहीं थे, इजी मीडियम थे, इजी मीडियम तो हो गया था। तो वैसे ही जैसे जैसे डिक्रीज होते जाती है ना कंपनी, उनका जो लेवल होता है वो भी डिक्रीज होते जाता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल होता है, डिफिकल्टी लेवल होता है। या हाँ, तो क्वांटिफाई का ऑनलाइन टेस्ट निकल जाता है, और फिर इंटरव्यू राउंड्स होते हैं। इंटरव्यू राउंड 1 होते हैं, इंटरव्यू राउंड 2, आई थिंक इनका 3 राउंड होता है, तीनों के तीनों टेक्निकल होते हैं। आई वाज वेटिंग फॉर, आई वाज होपिंग कि 2 टेक्निकल होंगे और फिर एक मैनेजरियल होगा। तो मैनेजरियल तो आपका पूरा कम्युनिकेशन एंड ऑल, वो मतलब आपके साइड की स्किल्स हो गए ना। मेन जो होते थे मतलब प्लेसमेंट में जो होते हैं वो टेक्निकल राउंड ही होते हैं। अगर आप टेक्निकल निकाल लो, ठीक है, तो 90% आपका हो गया, समझो आप, ऐसा है। तो पहला टेक्निकल निकला, आई वाज हैप्पी। दूसरा टेक्निकल भी निकला, आई वाज होपिंग फॉर थर्ड वन टू बी एचआर राउंड, पर फिर तीसरा भी टेक्निकल ही होता है। पर फिर फॉर्चुनेटली तीनों के तीनों टेक्निकल निकल जाते हैं। और फिर ऐसा था कि हाँ, क्वेश्चंस याद है। ओके, सो क्वांटिफाई में लाइक क्वेश्चंस थे, काफी सिंपल क्वेश्चंस थे, लाइक इजी टू मीडियम लेवल थे। एक एरे का क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था? एक एरे है और फिर आई डोंट नो, लाइक सिंपल ही क्वेश्चन होता है, लाइक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट, काफी टाइम हो गया। हाँ, इजी टू मीडियम लेवल था। एरे से क्वेश्चन एक, ओके, सो पहला टेक्निकल में एक एरे से क्वेश्चन पूछा और एक सिंपल सा स्ट्रिंग से क्वेश्चन पूछा, तो 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछा, ठीक है। और फिर वो पूछने के बाद में उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चंस ओएस से पूछा, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। और फिर डीबीएमएस से भी वो क्वेश्चन पूछते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। डीबीएमएस से वो जॉइंस से क्वेश्चन पूछते हैं, टू बी स्पेसिफिक, जॉइंस होते हैं, इनर जॉइन आउटर जॉइन, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन पूछते, तो वो सारे मैंने मतलब कर रखे थे, क्योंकि लाइक इफ यू आर अपीयरिंग फॉर द प्लेसमेंट्स, तो फिर ओएस डीबीएमएस आपका होना ही चाहिए, मतलब वो क्लियर करना ही पड़ता है, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो जॉइन से क्वेश्चंस बता दिए मैंने पहला टेक्निकल में। दूसरा टेक्निकल में फिर से एरे से ही क्वेश्चन था, टू बी स्पेसिफिक। क्वांटिफाई जो है ना इजी मीडियम लेवल का था, ऐसा कुछ भी, मतलब कोडिंग क्वेश्चंस काफी सिंपल थे, तो मैंने कर दिए सारे दूसरे क्वेश्चन में भी। पर प्रॉब्लम यहाँ हुआ, क्वांटिफाई जो है सेकंड टेक्निकल में ही आई थिंक उन्होंने एक पजल क्वेश्चन भी पूछ दिया, जो कि काफी मुश्किल होता है। पजल क्वेश्चन तो मतलब अगर आपको आया तो आया, नहीं तो नहीं आया ना, काफी टाइम टेकिंग सा हो जाता है। तो एक पजल क्वेश्चन पूछे, और फिर मुझे क्वेश्चंस भी याद है। मतलब एक पजल क्वेश्चन ऐसा था कि जीएफजी के पजल सेक्शन पे है वो क्वेश्चन। एक मंकी होता है और फिर कुछ 30 फीट का वेल में गिर जाता है वो, और फिर 3 मीटर ऊपर, मतलब 3 फीट ऊपर चढ़ता है और फिर 2 फीट गिर जाता है, और फिर उसको निकलने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, पजल क्वेश्चन है जीएफजी। तो ये मैंने पहले कर रखा था, या एप्टीट्यूड टाइप से, राइट। या तो ये क्वेश्चंस मैंने करा था पहले, तो फॉर्चुनेटली मैंने उनको बता दिया, मतलब अपना अप्रोच बता दिया और कैसे सॉल्व करना है वो भी बता दिया, तो दे वर हैप्पी। प्रॉब्लम तब हुआ जब इसके बाद उन्होंने फिर से एक पजल क्वेश्चन पूछा। इसके बाद वो फिर से पजल क्वेश्चन पूछे, दूसरे पजल क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मैंने पहले करे नहीं थे, तो उसमें मुझे चैलेंजिंग हुआ थोड़ा सा। पर फिर वो होता है ना, मतलब उसमें दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि पहले किए नहीं थे। और फिर अपना जो भी डेटा पॉइंट्स है उनको यूज करके दिमाग लगाए, और फिर मैंने उनको अपना अप्रोच बताया, एंड या फॉर्चुनेटली माय अप्रोच वाज गुड, और फिर वो सेटिस्फाइड थे, तो दे वर लाइक ओके, इट्स गुड, ऐसे करके। तो फिर सेकंड टेक्निकल भी निकल जाता है। लास्ट वाले जो राउंड होते हैं वो भी टेक्निकल ही होते हैं। लास्ट वाले राउंड में भी उन्होंने मतलब डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछा था, टेबल्स दे रखे थे उसमें, उसमें भी ऐसे नॉर्मलाइजेशन वगैरह से क्वेश्चन वगैरह था, ऐसे करके कुछ। और फिर एक दो कोडिंग क्वेश्चन पूछे थे, वो भी सिंपल ही था। तो क्वांटिफाई में टेक्निकल राउंड्स वर नॉट दैट चैलेंजिंग, हो गए थे सारे, ठीक है। हो गया इंटरव्यू, और फिर रिजल्ट आया, आई वाज सिलेक्टेड, ठीक है। आई वाज हैप्पी, फाइनली हो गया, कि मतलब ऐसा। तो क्वांटिफाई क्लियर हो जाता है, या। तो ओके, दैट आपका सीवी का जर्नी बेसिकली कैसे स्टार्ट हुआ? हाँ, राइट, ठीक है। तो ऐसा होता है कि अभी तक स्विगी अपने
प्लेसमेंट मतलब अपने कॉलेज पे आई नहीं थी स्विगी अभी तक, क्योंकि हमारा प्लेसमेंट जो है 2020 में हो रहा था, एंड दैट टाइम आई थिंक पैंडेमिक हिट वाज देयर, ठीक है। एक तो कंपनीज कॉलेज आ नहीं रही थी प्लेसमेंट के लिए, बहुत बुरा सिचुएशन था, कंपनीज आ नहीं रही थी, जो कंपनीज आ रही थी उनके पैकेजेस जो है काफी कम थे। मतलब थर्ड चैलेंज ये था कि अगर आ भी रही है ना तो इनटेक ज्यादा नहीं था। मतलब नॉर्मली अगर स्विगी को 10 स्टूडेंट्स लेने हैं तो वो 3, 4 या 5 लेके जाएगी। या हाँ, तो ये सारे चैलेंजेस थी, तो इसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुआ। और अभी तक स्विगी ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आई नहीं थी, तो क्वांटिफाई में प्लेसमेंट हो जाता है, इसके बाद स्विगी आती है इलाहाबाद में, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में। तो वहाँ का स्टोरी ऐसा है कि 60 मिनट्स का टाइम है, ठीक है, और स्विगी का जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 4, और चारों के 4 मतलब मीडियम लेवल से होते हैं। मतलब स्टैंडर्ड ऐसा है, लाइक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स या फिर जिनका भी प्लेसमेंट हो चुका है या फिर जो भी मतलब इंटरव्यूज देते हैं उनको पता है कि स्टैंडर्ड ये है कि आपके पास में 60 मिनट्स का टाइम है, आपके पास 2 कोडिंग क्वेश्चन होना चाहिए मीडियम लेवल के। अमेजोन का भी सेम है। अमेजोन का एक और कहानी है, आई डोंट नो वी कैन डिस्कस दैट और नॉट, पर अमेजोन के साथ मेरा काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। कॉलेज में तो वो हो गया, ऑफ कैंपस में मैंने 3 बार अमेजोन के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे, 3 बार, ठीक है। और फिर एक तो अभी ऑफर स्विगी के साथ में ऑफर मिलने से रह गया, मतलब अभी तक उनका ऑफर पेंडिंग है, आई डोंट नो उनका ऑफर आएगा या नहीं आएगा। फिर पर सारे ऑफ कैंपस टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू सारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। ये अमेजोन के साथ में है, तो सबका यही कहानी है। 1 घंटे का टाइम है, आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर आप दोनों बनाते हो आप शॉर्टलिस्ट हो गए, ऐसा है, ठीक है। या तो स्विगी आती है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, आपके पास 60 मिनट है और वो 4 कोडिंग क्वेश्चन पूछती है। तो इट वाज लाइक कैसे करेंगे, मतलब तो फिर मुझे ऐसा लगा कि 4 कोडिंग क्वेश्चन है, 4 में से अगर 2 भी कर ले या फिर 3 भी कर ले तो शॉर्टलिस्ट तो हो ही जाना है, क्योंकि 4 काफी ज्यादा होता है, राइट। 60 मिनट और कॉम्प्लेक्सिटी उनका जो डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम लेवल का था, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन थे, डायनामिक प्रोग्रामिंग से थे, ठीक है। और फिर नॉर्मल क्वेश्चन आयरे से भी क्वेश्चन थे, पर अच्छे लेवल के थे क्वेश्चन। तो स्विगी के मैंने 1 घंटे में 2 क्वेश्चंस करे, फुल्ली करेक्ट, हैकर रैंक पे था, फुल्ली करेक्ट। उसके बाद में मेरे पास टाइम था, मेरे पास आई थिंक या तो 15 to 20 मिनट्स थे मेरे पास में। मैंने तीसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, तीसरा क्वेश्चन भी फुल्ली करेक्ट बन गया मेरे से, ठीक है। तो आई वाज रियली हैप्पी कि चलो अब हो गया, शॉर्टलिस्ट तो हो ही जाना है स्विगी में, ठीक है। और फिर एट दैट टाइम, ठीक है, अभी आई एम नॉट डिस्कसिंग माय फिगर्स राइट नाउ, पर एट दैट टाइम स्विगी का ऑफरिंग समवेयर अराउंड 29 या 28 लाख का सीटीसी था, और फिर बेस जो है वो 18 लाख का था, या 18 लाख का। और क्वांटिफाई का ऑफरिंग काफी कम था, लाइक अच्छा अभी तो क्वांटिफाई से निकल गए, तो आई थिंक वी कैन डिस्कस अबाउट इट। तो उनका 8.5 का सीटीसी था, 6.5 का बेस था, तो ऐसा था। तो स्विगी का ऑफरिंग 18 का बेस था, 28-29 का सीटीसी था। तो 1 घंटे में मैंने 3 कोडिंग क्वेश्चंस कर लेते हैं फुल्ली करेक्ट हैकर रैंक पे, तो मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस लगता है कि चलो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। कॉलेज प्लेसमेंट में ही स्विगी आती है, एंड 1 घंटे के अंदर आई वाज एबल टू डू 3 out of 4 क्वेश्चंस फुल्ली करेक्ट, हैकर रैंक पे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके थे। आई वाज रियली हैप्पी, ठीक है, क्योंकि आई वाज होपिंग कि शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और फिर मेरे पास 5 मिनट टाइम बचता है, ठीक है, 1 घंटे में 5 मिनट टाइम बचता है। तो फिर मैंने सोचा कि लास्ट वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर ही देते हैं, टाइम है तो। लास्ट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, एंड टू माई सरप्राइज क्वेश्चंस बना, एंड यू नो आउट ऑफ आई डोंट नो कितने टेस्ट केसेस थे, पर ऐसा था कि 10 में से 5 टेस्ट केसेस पास हो चुके थे। मतलब आई वाज एबल टू डू 50% ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इट वाज समथिंग लाइक 3.5 फुल्ली करेक्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, ऐसा। तो आई वाज स्विगी, तो आई वाज थिंकिंग कि चलो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, अब इंटरव्यू का तैयारी करना है, ऐसा। नेक्स्ट डे शॉर्टलिस्ट आता है, एंड आई वाज नॉट इन द लिस्ट। मतलब इट वाज रियली सरप्राइजिंग कि 1 घंटे में आप 4 क्वेश्चंस पूछते हो, उसमें से मैंने 3.5 करे, सारे करेक्ट, मतलब फिर भी मतलब मैं शॉर्टलिस्ट नहीं होता हूँ। तो इट वाज रियली सरप्राइजिंग कि ऐसे कैसे हो गया। बट आई डोंट नो, मतलब 3 to 4 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे, आई थिंक उन्होंने सारे के सारे फुल्ली करेक्ट बना रखे थे। तो या फिर वे भी हो सकता है मेरा सीजीपीए वगैरह की वजह से वो शॉर्टलिस्ट नहीं करते हैं, पर स्विगी में सीजीपीए क्राइटेरिया नहीं था, इसलिए मैं आई वाज यू नो आई वाज एबल टू गिव द इंटरव्यू एंड टेस्ट, मतलब आई वाज एबल टू गिव द टेस्ट
स्विगी में CGPA क्राइटेरिया था नहीं, एंड आई वाज एबल टू डू 3.5 क्वेश्चन आउट ऑफ 4. पर मे बी उन्होंने मतलब CGPA वगैरह को देख करके शायद उन्होंने शॉर्टलिस्ट नहीं करा होगा, मे बी. हाँ, हाँ, तो क्वांटिफाई में प्लेसमेंट हो जाता है. उसके बाद में बाकी सारी बाकी कुछ कंपनीज आई, बट देन आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द टेस्ट या फिर जो भी था, क्योंकि क्वांटिफाई में प्लेसमेंट होने के बाद में जो प्रिपरेशन का जो वो होता है ना, मतलब ड्रास्टिकली इट वेंट डाउन की हो गया, बहुत कर लिया कोडिंग, क्योंकि काफी टाइम से लगे हुए थे. मतलब आई वाज लाइक हो गया, अब थोड़ा रेस्ट लेते हैं. हाँ, तो बाद में जो कंपनीज आई ना, उसमें माय परफॉर्मेंस वाज नॉट माय बेस्ट, ऐसा बोलना चाहिए, तो हुआ नहीं. तो 2021 में जनवरी से 11th of January इज माय बर्थडे, एंड 11th of January से ही स्विगी का ज्वाइनिंग डेट होता है. So that was a birthday gift to me, I would say. 11th of January means after 2 days. Yeah. Okay, happy birthday in advance. Thank you, and lot of good things are happening in my life right now. Swiggy की तरफ से भी आ चुका है, सब कुछ अच्छा है, तो I'm thankful to everyone, God. और फिर 2 दिन बाद बर्थडे, एंड 2021 में 11th of January से 25 में मेरा ज्वाइनिंग डेट हुआ इंटर्नशिप के लिए. तो 11th of January, जनवरी से जुलाई तक इंटर्नशिप चला. Internship experience was good. Lot of good projects. I got an opportunity to work on really good projects. मतलब directly जो client के जो main project होता है उसी में I got onboarded onto it. So let's not get deep into that. और फिर स्विगी में क्वांटिफाई में इंटर्नशिप होता है 6 महीने का. उसके बाद में मुझे फुल टाइम ऑफर आता है. तो जुलाई से दिसंबर तक ये हुआ, मतलब क्वांटिफाई फुल टाइम, राइट. पर अभी तक दिमाग में ये आ चुका था, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स है, मतलब दे गॉट द प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम कॉलेज, और फिर द प्लेसमेंट ऑफर वाज रियली गुड ना, मतलब उनके पैकेजेस होते काफी अच्छे थे. एंड यू आल्सो नीड द फाइनेंशियल, राइट, मतलब फाइनेंशियल, लाइक यू नीड टू, लाइक पैसे सबको चाहिए, मतलब ठीक है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन कॉलेज एंड ऑल, फीस काफी ज्यादा होते हैं बीटेक वगैरह के. तो फिर मुझे अंदर से फील आता था कि आई डिजर्व समथिंग बेटर, राइट, इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग एंड दिस ऑफरिंग एंड ऑल. तो मैंने क्वांटिफाई में फुल टाइम काम करते करते आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज एंड कोडिंग एंड ऑल बैकग्राउंड में भी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इफ आई एम नॉट एबल टू क्रैक दिस Amazon एंड देन फ्लिपकार्ट एंड देन जोमेटो स्विगी टेस्ट, तो फिर I don't deserve them. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे I need to work on my coding skills, ठीक है. कोडिंग स्किल्स एकेडमिक्स में काम किया, मतलब OSDBMS पढ़ना स्टार्ट किया, कोडिंग किया. एंड कोडिंग के लिए लाइक इफ यू वांट टू रिकमेंडेड, तो फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ लीड कोड करा, लीड कोड, और फिर गिग फॉर गिग्स, या लीड कोड के मीडियम, या सबसे पहले तो वही करे, मतलब टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन उठाओ, सारे कर डालो. हाँ, तो वो सारे करे. और फिर स्विगी तक का जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रहा है. जस्ट इट विल टेक जस्ट 5 मिनट. तो फिर ऐसा हुआ है कि स्विगी में आने से पहले आई वेंट टोटली इनटू जॉब हंटिंग मोड, आई वुड से, ठीक है. लिंक्डइन पे काफी एक्टिव होना है, और जो भी कंपनीज दिखी, ठीक है, जिसमें भी ओपनिंग्स आ रहा है बस अप्लाई करते जाओ, ठीक है. पूरा अप्लाई किया, एंड इट वुड बी सरप्राइजिंग, क्योंकि मैंने मोर देन लाइक आई वुड से 80, 90 to 100 कंपनीज अप्लाई किए मैंने लिंक्डइन पे, और फिर ऑफ कैंपस में, ठीक है. और फिर फॉर्चुनेटली रेज्यूमे जो था मेरा, इट वाज गुड इनफ, ठीक है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद में कंपनी से रिप्लाई आ जाता था मुझे कि यस, उनका ऑनलाइन टेस्ट लिंक आ जाता था. हाँ, बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारी कंपनीज तो रेज्यूमे पे भी शॉर्टलिस्ट कर देती कि मतलब वो दे विल नॉट गिव यू ऑनलाइन टेस्टिंग. मतलब ऑफ कैंपस में यही एक चैलेंज है कि आपको ऑनलाइन टेस्टिंग मिलता नहीं. आप अप्लाई करो, आपका एप्लीकेशन जो है वैसे डंप हो जाता है, मतलब आपको ऑनलाइन टेस्टिंग मिलता ही नहीं है, ठीक है. तो मेरे केस में ऑनलाइन टेस्टिंग मिलता था मुझे, एंड ऑनलाइन टेस्ट देते थे, बट देन आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द ऑनलाइन टेस्टिंग. मतलब 3 क्वेश्चंस होते थे, 3 में कभी 2 बन गया, 4 क्वेश्चंस में कभी 3 बन गया. अगर 2 क्वेश्चंस हुए तो 2 क्वेश्चन में कभी 1 बन गया, कभी 1.5 बन गया, कभी फुल नहीं बना, ऐसा. हाँ, तो काफी सारी कंपनीज, बाइट डांस,
ठीक है, हाइक बोल लो, आप टिकटॉक बोल लो, अमेजोन बोल लो, वॉलमार्ट बोल लो, जितने भी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज अप्लाई करे मैंने ऑफ कैंपस में, सब में फेलियर। ठीक है, अमेजोन में भी काफी बार फेल हुए। एक बार अमेजोन में अप्लाई किया ऑफ कैंपस, ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू गए, इंटरव्यू में फेल हो गए, फिर से अप्लाई किए। तो काफी 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 सारा ये हो रखा है, काफी लॉट्स ऑफ कंपनीज एंड लॉट्स ऑफ फेलियर्स आर देयर। ठीक है, और फिर तब तक से मेरा प्रिपरेशन चल ही रहा था। और फिर स्विगी का ऐसा हुआ कि आई वॉज एक्टिव ऑन लिंक्डइन। स्विगी अपना हायरिंग स्टार्ट किया, मुझे पता चला पीपल वेर ऑफरिंग दी रेफरल्स एंड ऑल। ठीक है, मैंने वो रेफरल फॉर्म भर दिया, गूगल फॉर्म, और फिर फाइनली टेस्ट लिंक आता है स्विगी का। एंड जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ऐसा 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 फेलियर्स हो रहे थे ना, मतलब आप ऑनलाइन टेस्ट, एक तो ऑनलाइन टेस्ट नहीं निकले, अगर ऑनलाइन टेस्ट निकले तो आपका इंटरव्यू ना निकले, इंटरव्यू पे आप पहला राउंड पे फेल हो जाओ, दूसरा राउंड पे फेल हो जाओ। ठीक है, तो ऐसा मेरे साथ में ऑन राउंड फिगर इफ आई कैन रिमेम्बर 5 to 6 कंपनीज है जिनमें मैं इंटरव्यू राउंड पे फेल हुआ हूँ। ठीक है, इंटरव्यू राउंड पे, और बहुत कभी कभी तो ऐसा हुआ कि मैं फाइनल राउंड पे भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो बहुत फेलियर, बहुत सारा डिमोटिवेशन था। मतलब एक कंपनी है बुकू वारुंग करके, इट इज इंडोनेशिया बेस्ड, बुकू वारुंग, यू माइट नॉट बी नोइंग इट, पर अच्छी कंपनीज है। दे वेर ऑफरिंग मी 20 lakhs ऑफ बेस पैकेज। ठीक है, तो उनमें मतलब मेरा सेकेंड टेक्निकल राउंड में आई थिंक रिजेक्शन हुआ। ठीक है, एक कंपनी है डीपी वर्ल्ड, दुबई बेस्ड कंपनी है, दे वर ऑल्सो ऑफरिंग में गुड पैकेज, और मे बी सेकेंड राउंड में, टेक्निकल राउंड में रिजेक्शन हुआ। उसके बाद में अमेजोन में भी एक बार इंटरव्यू राउंड पे रिजेक्शन हुआ, और फिर काफी सारी हाइक मैसेंजर जो है HI की, उसमें भी रिजेक्शन हुआ। या तो काफी सारे रिजेक्शंस थे, और इतने सारे फेलियर्स एंड रिजेक्शंस कि मतलब आई वाज गेटिंग डिमोटिवेटेड। तो फिर पापा को ऐसा लगता था कि तुम मतलब इंटरव्यू दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, पर तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं है, मतलब तुम बस बैठ जा रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, और तुम फेल होके आ जा रहे हो। ऐसा पापा का ऐसा कहना था। तो इट वाज रियली डिमोटिवेटिंग, और फिर काफी प्रॉब्लम था। मतलब फिर पापा बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, कुछ टाइम के लिए तुम रेस्ट लो, यू डोंट हैव टू गिव द टेस्ट, मतलब फॉर्म भरना छोड़ दो। इससे पहले ऐसा था कि लिंक्डइन पे जाओ, जो भी फॉर्म दिखा, जो भी कंपनी ओपनिंग है, आप अप्लाई कर दो, ऐसा था। तो पापा बोले कि ठीक है, बहुत सारे फेलियर्स हो रहे हैं, अच्छा नहीं है, थोड़ा यू शुड टेक रेस्ट, और फिर कुछ टाइम के लिए मतलब अभी काम वाम करो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, ऐसे बोल करके। और फिर आई वाज आल्सो बहुत डिमोटिवेटेड हो गया था, मतलब कि नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब पता नहीं। तो फिर स्विगी वाज द लास्ट रे ऑफ होप। इसके बाद मैं गिव अप करने वाला था, मतलब ऐसा हुआ था, मतलब या इसके बाद मैं गिव अप ही करने वाला था। तो ऐसा होता है कि स्विगी का ऑनलाइन टेस्टिंग आता है रेफरल के थ्रू, ऑनलाइन टेस्टिंग जो एक्सपीरियंस आपने लिए 5 to 6 कंपनी और जो फेलियर्स, यही एक बेसिक रेट की बेसिकली या हाँ, बट अगेन बहुत सारे फेलियर्स थे, तो इसके बाद गिव अप भी करने वाले थे। तो ऑनलाइन टेस्टिंग आता है, स्विगी का जर्नी है सारा, ऑनलाइन टेस्टिंग आता है, ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये नॉर्मल सा हो गया था। अभी तक जो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर होना नॉर्मल सा हो गया था। इससे पहले का बात ये था कि ऑनलाइन टेस्ट ही क्लियर नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद में एक फेज आया जिसमें मेरा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हुआ, एंड आई वाज अपियरिंग फॉर द इंटरव्यूज, और फिर मेरा इंटरव्यूज में रिजेक्शन होते थे। 3, 4, 5, 6 कंपनी में इंटरव्यू में रिजेक्शन हुए। तो स्विगी में भी सेम स्टोरी हुआ, मतलब ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो गया। ठीक है, इंटरव्यूज के लिए मुझे मेल आए। ठीक है, और फिर ठीक है, आई वाज थिंकिंग कि हाँ ठीक है, ये तो मतलब वैसे ही होना है, इंटरव्यूज देने हैं, फर्स्ट या फिर सेकंड टेक्निकल राउंड में फेल हो जाना है। ऑफ कैंपस टेस्ट में स्विगी के असेसमेंट है, तो उसमें भी ऑन कैंपस जैसे कोर प्रेशर जैसा आपने क्लियर बनाया नहीं, या मतलब आई वुड से कि ऑफ कैंपस में काफी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, जो डिफिकल्टी लेवल हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ, पहला तो आपको ऑनलाइन टेस्ट नहीं मिलेगा, इस कॉम्प्लेक्सिटी लेवल की आपने प्रिपरेशन अब तक कर रखी है। हाँ, अब तक प्रिपरेशन चल ही रहा था। हाँ, अब तक प्रिपरेशन चल ही रहा था। और फिर जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, आई वुड से इट वुड टेक जस्ट 2 or 3 minutes, पर इसको भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि फ्यूल कहाँ से मिला। ठीक है, ऐसा हुआ कि 2020 में पैंडेमिक की वजह से प्लेसमेंट में काफी प्रॉब्लम्स था। ठीक है, पर इस बार अगर आप देखो, आप डेटा स्टैटिस्टिक्स देखो 2021 का, मतलब इस बार पिछले साल, अभी 2022 हो गया, पिछले साल इतना अच्छा प्लेसमेंट चला। ठीक है, इतना अच्छा प्लेसमेंट चला। मेरे कॉलेज में IIIT इलाहाबाद में
एवरेज का पैकेज अभी 28 lakhs हो चुके हैं, एवरेज पैकेज ऑफर। हाँ, दैट इज इवन इवन बहुत सारी आईआईटी से भी बेटर है, कुछ आईआईटी से। हाँ, तो अगर आप देखो, हाँ, क्योंकि इस बार इतनी अच्छी प्लेसमेंट हुई, ट्विटर, बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज है, एंड उनके ऑफरिंग्स 40 lakhs, 50 lakhs, कईयों के 60 lakhs, 56, 30, 40, ठीक है, ऐसा उनका ऑफरिंग हुआ। तो फिर मुझे पता चला कॉलेज के स्टूडेंट से, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो बताए कि ऐसे ऐसे प्लेसमेंट चल रहा है। और फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे लेवल के थे, या फिर ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट आई वुड से कि जो मेरे से मतलब मतलब मैं ठीक ठाक था, पर मेरे से जो नीचे थे, जो पढ़ाई लिखाई जिनका कुछ भी था नहीं, जो मौज मस्ती बस ऐसे ही करते रहते थे, ठीक है ना, उनका भी अच्छा खासा प्लेसमेंट हो गया इस बार, ठीक है। तो ये सारा जो है, मतलब आई वॉज काइंड ऑफ हैविंग दैट फीलिंग कि नहीं, मतलब यहाँ पे नहीं रुकना है, क्योंकि क्वान्टिफाई का जो 6.5 का बेस था, समवेयर अराउंड 50,000 पर मंथ आते थे सैलरी, ठीक है। तो हाँ, तो मतलब आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड कि थोड़ा कुछ चाहिए, क्योंकि फैमिली को भी सपोर्ट करना है, ठीक है। तो वो था अंदर से, तो वो भी एक मोटिवेशन फ्यूल बना कि प्रिपरेशन करना है, या राइट। तो फिर काफी प्रिपरेशन किए थे, पर फेलियर्स भी हो रहा था, पर स्विगी में हुआ, ऑनलाइन टेस्ट निकल गया। फिर अभी भी वही फीलिंग था कि हाँ ठीक है, इंटरव्यू हो जाएगा, पहला या फिर दूसरा राउंड में इसमें भी रिजेक्ट हो जाना है, ऐसा मुझे लग रहा था, ठीक है। तो पापा बोल दिए थे स्विगी का, मतलब इस बार क्या हुआ कि पापा को बताया नहीं, क्योंकि हमेशा का यही कहानी है, आप ऑनलाइन टेस्ट निकालो और फिर इंटरव्यूज दो और फिर फेल हो और फिर पापा को बता दो कि हाँ पापा नहीं हुआ, ठीक है। तो इस बार पापा को बताया नहीं कि स्विगी निकल गया है। तो पापा बोले कि देखो बहुत हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट ले लो, ठीक है, अच्छा नहीं हो रहा है तुम। पापा ने ये भी बोला कि पता नहीं तुम प्रिपेयर करते हो कि नहीं, ऐसे बस अपियर हो जाते हो, फेल हो के आ जाते हो, थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा प्रिपेयर करो, ऐसे बोले पापा। फिर क्योंकि इधर मैं आई वॉज वर्किंग एज अ फुल टाइम इन क्वान्टिफाई, राइट, तो क्वान्टिफाई को भी टाइम देना है आपको, इसके बाद आपको प्रिपेयर भी करना है, ठीक है। तो उतना अच्छा भी प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा था समवेयर, पर ऐसा लगा रहा, फेलियर्स एंड फेलियर्स, और फिर जो भी फेलियर्स हुआ उससे आप सीख लो और थोड़ा सा बेटर करो। तो इंटरव्यूज होते हैं स्विगी के, ठीक है। अगर आपको डिटेल में जो एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे गए और फिर सारे राउंड्स कैसे हुए, आई हैव रिटन एन आर्टिकल, इट्स अ गीक फॉर गिग्स आर्टिकल, और फिर मैं वो प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि इफ वी विल बी डिस्कसिंग द एग्जैक्ट क्वेश्चंस और फिर इंटरव्यू कैसे थे, ठीक है ना, इट वुड गो वे लॉन्ग। तो फिर या आई वुड प्रोवाइड द आर्टिकल लिंक, पर फिर इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू, पहला इंटरव्यू निकल जाता है, फर्स्ट टेक्निकल निकल जाता है, और टेक्निकल राउंड्स जो होते हैं ना, यही मेन होते हैं, मतलब इसके बाद मैनेजरियल तो काफी चिल होता है, आप निकाल लोगे। तो पहला टेक्निकल निकल गया, आई वॉज हैप्पी, पर फिर भी डर था दूसरे टेक्निकल में, क्योंकि टेक्निकल तो टेक्निकल होता है, ठीक है, उसमें कोडिंग पूछे जाएंगे आपको, सिस्टम डिजाइन भी पूछे थे स्विगी वाले, ठीक है। तो पहला टेक्निकल निकल गया, दूसरा टेक्निकल भी निकला, ठीक है, पर अभी तक पापा को नहीं बताया, कि पापा को बताया नहीं कि निकल गया, कुछ भी नहीं होता है। पहला निकल गया, नहीं बताया पापा को, फिर प्रिपेयर किए, दूसरा टेक्निकल निकल गया, आई वाज हैप्पी, ठीक है। और फिर इसके बाद मैनेजरियल राउंड, अच्छा, टॉकिंग अबाउट डेज, पहला टेक्निकल हो गया, ठीक है। रिजल्ट उसका मुझे उसी दिन बता दिया गया, मतलब हाफ एन आवर लेटर एचआर का कॉल आता है, वो पता चल जाता है कि यू आर सिलेक्टेड या क्वालिफाइड। नेक्स्ट राउंड के लिए, सेकंड टेक्निकल राउंड के लिए मुझे एक दिन का गैप मिला, एक दिन नहीं, आई थिंक नेक्स्ट डे ही सेकंड टेक्निकल था, नेक्स्ट डे सेकंड टेक्निकल था, हाँ। तो सेकंड टेक्निकल निकल गया, अगेन सेकंड टेक्निकल के बाद में हाफ एन आवर के बाद में मुझे एचआर से पता चला कि ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया, और फिर मैनेजरियल राउंड है, उसके लिए मुझे एक 1 डे का बफर मिला। तो एक दिन बाद मैनेजरियल राउंड। अब कैसा माइंड में, अब क्या चल रहा है? पहले ऐसा था कि ठीक है इंटरव्यूज हो रहे हैं लेकिन रिजेक्शन भी जा रहा है, रिजेक्शन भी बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 टेक्निकल राउंड्स निकल गए, फाइनल राउंड वो भी मैनेजरियल। अच्छा, इससे पहले अभी तक भी वो फीलिंग नहीं आया था, इससे पहले ये बता दो, हाँ हो गया, पर इससे पहले अमेजोन जो था ना, अमेजोन में ऐसा हुआ था, ऑनलाइन टेस्ट निकला,
पहला टेक्निकल निकला, दूसरा टेक्निकल निकला, मैनेजरियल भी अच्छा गया, पर फिर भी उनका रिजेक्शन ही था। आई डोंट नो व्हाई। इसलिए हाँ, इसलिए फिर भी फील नहीं आ रहा है। न्यूट्रल है, हाँ, मतलब अभी भी डर है कि कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। और फिर मैनेजरियल आता है, मैनेजरियल राउंड, तो उसमें ये डर लगता है कि मैनेजरियल जो राउंड है वो एचआर राउंड नहीं है। मतलब व्हाट इज योर वीकनेस, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, या फिर व्हाई डू यू वांट टू जॉइन स्विगी, ये सारे क्वेश्चंस नहीं होने। जो मैनेजर थी मेरी स्विगी की, आई वेंट ऑन टू हर प्रोफाइल लिंक्डइन पे, आई वेंट थ्रू हर प्रोफाइल एंड सी वाज द डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग एट स्विगी। उनकी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। सी वर्कड ऑन Amazon फॉर अराउंड 6 to 10 years, आई डोंट नो, समवेयर अराउंड 6 to 8 years Amazon में उनका एक्सपीरियंस रहा। और फिर इधर स्विगी, फ्लिपकार्ट में भी वो काम कर चुकी है, एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज, ठीक है। तो आई वाज स्केयर्ड कि क्या पूछा जाएगा मेरे से, फिर कैसा, तो अभी भी डर था। एंड आई वाज थिंकिंग कि ओएस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर डीबीएमएस से, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, या फिर कैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो वो डर था। और फिर एक दिन का बफर था, तो मैंने क्या करा, मैंने ओएस पूरे पढ़ डाले, पूरे डीबीएमएस पढ़ डाले, मतलब रिवीजन पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरा सारा पढ़ डाला। और फिर अपने बारे में भी, और जो भी मेरे बैकग्राउंड था सारा रिवाइज कर चुका था मैं। अभी तक ऐसा फील आ रहा था कि 2 टेक्निकल बड़ी मुश्किल से निकले, ठीक है। जो भी करना है मतलब मैनेजरियल में अपना बेस्ट देना है, इसमें रिजेक्ट नहीं होना है, ऐसा आई वाज टॉकिंग टू माई सेल्फ। पर अभी भी फैमिली वालों को बताया नहीं था कि ये सारा हो गया था, ऐसे करके, क्योंकि हमेशा मतलब डिसअपॉइंट ही होता था। हाँ पापा ये निकल गया, ये निकल गया, 2 दिन बाद हाँ नहीं हुआ सर, इसलिए कुछ नहीं बताया था। तो मैनेजरियल राउंड होता है, और गॉड, और फिर मैनेजरियल राउंड में मतलब फॉर्चुनेटली अब निकालने के बाद ही बताएंगे। तो वैसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछती है। जो ओएसडीबीएमएस से जो टेक्निकल डर था, वैसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है मेरे से। माय एक्सपीरियंस इन क्वांटिफाई, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, ठीक है। माय फुल टाइम एक्सपीरियंस इन क्वांटिफाई, व्हाट वाज माय रोल, ठीक है। एंड देन व्हाट वाज माय कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टीम में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या था, ठीक है। और फिर ये सारा क्वेश्चंस, मतलब एक तरह से एचआर राउंड की तरह आप ये सारा क्वेश्चंस आप दे पाओगे। मतलब you just have to be confident, and then you just have to tell them whatever your experience was. ये क्वेश्चन थे बेसिकली। एंड we had a good discussion about स्विगी क्या काम कर रही है, and what are the plans about the company, ठीक है, पैंडेमिक का क्या प्लान है। एंड ऑल्सो we had a very good discussion about स्विगी वर्सेस जोमेटो, जोमेटो ये है, स्विगी क्या कर रहा है मार्केट में। एंड देन we had a really good discussion, मतलब ऐसा डिस्कशन हुआ कि बाय द एंड ऑफ द आवर, 1 घंटे का इंटरव्यू था। आई हैड अ फीलिंग कि हाँ मतलब ये तो होना है, मतलब आई रियली इम्प्रेस्ड हर, एंड शी वाज रियली हैप्पी विद माय कम्युनिकेशन एंड द इंटरेक्शन दैट वी हैड। तो एक वो फील आ गया। और फिर लास्ट में उन्होंने बोल भी दिया कि लाइक शी गेव अ हिंट कि यू वर गुड एक्चुअली, ऐसे करके। तो हाँ ठीक है, तो इंटरव्यू हो चुका है, मैनेजरियल राउंड खत्म हो चुका है। मतलब आई वाज अगेन प्रेइंग कि भगवान इस बार तो करा दो, ठीक है। और फिर आई वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि टेक्निकल्स में आपका इंटरव्यू हुआ, आधे घंटे के बाद आपका रिजल्ट आता था एचआर की तरफ से। तो मैनेजरियल राउंड में ऐसा होता है कि इंटरव्यूज हो जाते हैं पर रिजल्ट नहीं आता, एचआर का कॉल ही नहीं आता। दैट वाज अ फीलिंग, मतलब क्या बताऊं कि जो फील हो रहा था ना कि मतलब सारा कुछ अच्छा रहा, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। वो दिन भर रिजल्ट नहीं आता। एंड अभी तक मेरे पास एचआर का नंबर आ चुका होता है कि मतलब इससे पहले काफी बार बात हो चुका होता है। नेम इज ईवा पानीकर, तो उनसे बात हुआ मेरा। एंड या राइट, तो उनसे बात हो चुका होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुड आई कॉल हर, पूछ लो क्या हुआ कि नहीं हुआ। मतलब वो जो फीलिंग होता है ना। तो फ्रेंड्स थे मेरे, वो बोले कि कंट्रोल, यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू बी दैट यू डोंट हैव टू डेस्परेट, यू डोंट हैव टू बी दैट डेस्परेट। वो बोले कि उनके पास में तुम बस नहीं हो, और भी सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट आ जाने तो वो बताएंगे आराम से। तो उस दिन मैंने कॉल नहीं करा, मैंने आई कंट्रोल्ड माई सेल्फ कि नहीं कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो वो दिन चला गया। दूसरे दिन मॉर्निंग से आई वाज वेटिंग फॉर अ कॉल, ठीक है। फोन वगैरह सारे फुल वॉल्यूम पे है, सो दैट रिंग हो तो तुरंत पता चल जाए। हमेशा अपने पास में फोन है, बाहर जा रहे अपने पास में फोन है कभी भी, पर दिन भर फोन नहीं आया, ठीक है। एंड आई वाज ट्राइंग हार्ड कि कॉल करे ना करे। मेरे फ्रेंड सारे बोल चुके थे कॉल नहीं करना, यू डोंट हैव टू बी डेस्परेट। पर फिर भी समवेयर अराउंड 1 बजे का टाइम है, आई वाज नॉट एबल टू कंट्रोल। और फिर मैंने उनको कॉल कर लिया, क्योंकि सारे परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस वाज गुड एक्चुअली, ठीक है, और उनका कॉल आ जाना चाहिए। तो 1 बजे मैंने उनको कॉल कर दिया अपने साइड से, और फिर उनको बोला कि हे माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज रियली गुड, मैनेजर राउंड हो चुका है एंड वी हैड अ ग्रेट इंटरैक्शन विद द मैनेजर, तो मेरा रिजल्ट का क्या है। तो वो बोलती है, उन्होंने बताया मुझे कि अभी तक तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है उसका डिस्कशन नहीं हुआ पैनल के साथ में बेसिकली। तो आई थिंक वो सारा मतलब आपका जो परफॉर्मेंस हुआ कैसा रहा, टेक्निकल राउंड 1, टेक्निकल राउंड 2, तुम्हारा आपका मैनेजरियल राउंड जो है कैसा रहा आपका, उनका एक बार डिस्कशन होता होगा कि शुड वी हायर दिस कैंडिडेट और नॉट, ऐसे करके। तो वो तुम्हारा हुआ नहीं है, इसलिए रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, you'll get the result by tomorrow, ऐसा बोल के उन्होंने बोला। हाँ, तो चलो ठीक है, मतलब कि अभी एटलीस्ट अभी तक डिस्कशन नहीं हुआ है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि वो डिस्कशन कर दिए पर फिर भी मेरा रिजल्ट पेंडिंग पे चल रहा है, तो दैट इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है, क्योंकि अमेजोन के साथ ऐसा हुआ था। अमेजोन रिजल्ट देने में वो 1 महीना तक डिले कर दिया थी, तो और फिर 1 महीने के बाद पता चलता कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। तो मुझे वो डर था अभी भी कि आप गिवन माय बेस्ट, तो अभी भी क्यों नहीं हो रहा, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, वैसा फील आ रहा। और फिर दूसरे दिन अगेन आई वाज वेटिंग फॉर हर कॉल कि वो कॉल आ जाए, ठीक है। तो फिर आई डोंट नो व्हाई, पर उन्होंने कॉल ही नहीं किया अभी तक। तो इस बार भी फिर से आई गिव हर अ कॉल, ठीक है, कि मैंने उनको कॉल कर दिया। तो शी सेज कि मतलब यू आर सिलेक्टेड, कांग्रेचुलेशन। या हाँ, तो उन्होंने बोला कि जो ऑफर लेटर वाली जो टीम है ना, उनको आपके साथ सैलरी का नेगोशिएशन करना है, तो इसीलिए हम आपको कॉल नहीं कर रहे थे बेसिकली। तो वो आपको कॉल करने वाले थे, वो आपको न्यूज बताने वाले थे, और फिर वो सैलरी का नेगोशिएशन हो रहा था। हाँ, राइट। हाँ, वो तो बाद में देखेंगे, सैलरी स्विगी है तो जो भी देंगे एटलीस्ट क्वांटिफाई से तो बेटर ही मिलेगा जो भी है, ठीक है। तो ऐसा था, तो सैलरी नेगोशिएशन था। तो मुझे सैलरी नेगोशिएशन अगेन फॉर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस, मुझे इस बात का डर था कि मेरा क्वांटिफाई का सैलरी जो बेस या फिर सिटी से जो भी था मेरा काफी कम था। तो सैलरी नेगोशिएशंस का जब बात आता है तो मुझे लगा कि मेरा करंट प्राइस, मेरा करंट सिटीसी पे वो बढ़ाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा डर कि स्विगी का 18, अगर आप देखो 18 उनका बेस है नॉर्मल कॉलेज ग्रेजुएट के लिए जो जस्ट आउट ऑफ कॉलेज हो रहे हैं। तो मुझे भी ये डाटा पता था सारा। तो मुझे डर था कि आप बस 18 दे दो मुझे, उससे ज्यादा आप जो कॉलेज जो निकल रहे कॉलेज फ्रेश ग्रेजुएट है उनका जो आप ऑफर कर रहे हो वो मुझे कर दो, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा मन में था। पर डर था कि मेरा करंट सीटीसी को देख करके वो कितना हाइक करेंगे, मतलब अगर आप 8 सीटीसी से कितना हाइक कर लोगे 200%, 100%, 200% ऐसा। तो मुझे डर था कि कहीं वो 12-13 ना कर दे या फिर 15 ना कर दे, ऐसा डर था। पर मुझे ये पता चला कॉल करने के बाद में कि ये जो सैलरी नेगोशिएशन वाला टीम है वो आपको कॉल करने वाले थे, इसीलिए वी वर नॉट गिविंग यू अ कॉल। तो मैं उनको बोला कि फिलहाल तो मैं सिलेक्ट हो गया हूँ ना, शुड आई इन्फॉर्म माय पेरेंट्स अबाउट दिस कि आई एम सिलेक्टेड। तो शी सेज कि यस यू आर सिलेक्टेड एंड कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड, यू कैन इन्फॉर्म देम। तो गॉड आई डोंट नो, लाइक वो वाला जो फीलिंग था ना, वो लास्ट बार क्वांटिफाई में सिलेक्ट हुए थे उस टाइम पे वो फीलिंग था, मतलब हाँ। तो प्लेसमेंट लग जाने के बाद में जो फीलिंग आता है ना, सबसे पहले आई प्रे टू गॉड कि फाइनली ये सारा हो गया। पापा को बताए, राइट। और फिर मेरे फ्रेंड्स भी है ना काफी सपोर्टिव रहे हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स है, ही इज फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आल्सो, अभी उनका प्लेसमेंट हो चुका है, फ्रेंड है, काफी क्लोज है। और फिर घर पे भी फ्रेंड्स है, इधर उधर जो भी है काफी सपोर्टिव रहे, मतलब मेरे फेलियर्स वगैरह को लेकर के। तो उनको बताए, वी वर सेलिब्रेटिंग, और फिर अभी बस सैलरी नेगोशिएशन का वेट था, मतलब जो भी आप देख लेंगे जितना भी ऑफर करेंगे। पर फिर भी थोड़ा सा डर था कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो दे रहे हो उससे कम ना कर दे, क्योंकि मेरा सीटीसी बेस काफी कम है, ठीक है। तो क्योंकि नेगोशिएशन में मतलब आपका करंट वाले से इंक्रीज होता है जो भी है। पर ऐसा होता है, नेक्स्ट डे फिर कॉल आता है सैलरी नेगोशिएशन वालों का, और फिर वो जो स्टार्टिंग में जो बोलते हैं ना, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था ना उससे वो ज्यादा बोलते हैं, टू माय सरप्राइज। तो उसके बाद में कुछ बोल ही नहीं पाया, मतलब ठीक है आपको जो देना आप दे दो, नेगोशिएशन के नाम पे वैसा था। हाँ, समझ जाएंगे। तो मतलब जितना जो उनका 18 था, हाँ 18 से ज्यादा ही ऑफर किए। तो आई वॉज I couldn't
स्पीक मच, मतलब उसके बाद में कुछ बोल ही नहीं पाया कि हाँ ये कर दो वो कर दो। और पर फिर भी मतलब थोड़ा सा मैं एक तो 18 से ऊपर बोले हो पहला, उसके बाद मैं उनको ऐसा बोल दिया जस्ट नेगोशिएशन के नाम पे कि हाँ मतलब मुझे अगर इसको इतना कर देते तो वो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो वो जितना बोले थे उससे भी मैं थोड़ा सा ऊपर करके बोला कि ये ज्यादा सही रहता, तो वो बोले कि हाँ हाँ वो हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। तो ऐसा रहा। हाँ या राइट। तो काफी सारे फेलियर्स रहे, उसके बाद में स्विगी हुआ। 2020 वाज गुड, अभी 2022 हो गया, अभी काफी सारे प्लान्स है, मतलब स्विगी इज एक्चुअली वेरी गुड। और फिर अभी कंटिन्यू करना है, और फिर काफी कुछ सोच रखा है, ये करना है वो करना है। और सो फाइनली आई एम एट अ प्लेस दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एट, ठीक है, क्योंकि मतलब मुझे वहाँ पे नहीं था, मुझे एक ऐसे जगह पे चाहिए था, और फिर अभी वहाँ पे हूँ। तो it's a blessing for me, and I'm really thankful to everyone, family, friends, and God, of course. Yeah. Okay. Yeah. So I think you have discussed a lot of helpful points. Yeah. Yeah. It was really great and a lot of session. Really Yeah, it was a long session. Yeah. but Yeah. It was it was quite an experience, and I didn't go like, मैंने इससे पहले उतना पीछे बैकग्राउंड को देखने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि यही सब चल रहा था। पर अभी आपने जो पूछते गए ना, आप मेरे स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज से लेकर के सारा चीज करते गए, तो सब कुछ रिवाइंड हो गया, सब कुछ रिवाइंड हो गया। या आप शुरू में पूछ रहे थे व्हाट विल बी द क्वेश्चंस, या तो मैंने जैसा बताया था जर्नी एक जर्नी चली हो, वैसा ही चला है। तो बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्कस की, ग्रेट डिस्कशन है, बहुत से मोटिवेशनल पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छा सेशन है। तो IHSPET.com के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो जैसे आपने कहा था कि सामने इस तरह से हम लोग खुद का असेसमेंट टेस्ट प्लेटफॉर्म है, IHSPET इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, तो हम लोग भी बहुत से इंस्टीट्यूट से पेन लाए हैं, और कंपनीज ने हमारे प्लेटफॉर्म में लाइक दूसरे प्लेटफॉर्म से आपको बताया इस तरह से बहुत कंपनीज हमारे प्लेटफॉर्म से लाए हैं कि बिहाफ में असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। ओके, तो इंस्टीट्यूट में बहुत से असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं पैन इंडिया डिफरेंट स्टेट्स में, एंड कैंडिडेट्स भी प्लेस हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। तो बेसिकली का HR Tech and EdTech platform currently like we 556 plus companies in India and around 150 plus institutes in India. And जैसे did you say did you need training with officer से जो discussion होते थे, तो एक और डिमांड थी कि provide trainings to trainings हम लोग काम कर रहे थे, बट हम लोग लास्ट ईयर हम लोग बेसिकली असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और आपको तो बहुत अच्छा इवन स्टार्टअप्स और आइडियाज हुआ फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। तो इस डिमांड का हम लोग जो है प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स लेकर के आ रहे हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग की कोडिंग सेक्शन में बेसिकली C++ एंड जावा इस पे कमांड देना चाहते हैं कैंडिडेट्स को। उसके साथ साथ बहुत से MNCs नॉन टेक्निकल भी इंक्लूड करते हैं अपने रिक्रूटमेंट, जैसे क्वांटिटेटिव एपिडेमियोलॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, तो ये भी रहेगा बेसिक। और सॉफ्ट स्किल्स, मॉक इंटरव्यूज, सॉफ्ट स्किल्स में जितने भी जैम, न्यू वॉइस टेस्ट आपने सुना होगा, SAR, ये सारी चीजें प्लेसमेंट कोर्स में जो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। तो मिक्स अप जो है ट्रेनिंग के साथ भी मिक्स पूरे ट्रेनिंग भी लेकर आ रहे हैं, असेसमेंट टेस्ट तो कंडक्ट कराते हैं, तो इसके साथ भी बहुत जल्द आ रहे हैं। बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस ये भी हम लोगों का एक ब्रांच है जो हम लोग चाहते हैं कि एक प्लेसमेंट हब बने ये प्लेटफॉर्म। ओके, तो कैंडिडेट्स जो है पूरी तरह से रेडी हो करके जाए, यहाँ से वो अप्लाई अपने असेसमेंट टेस्ट देकर के अप्लाई भी कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज में, प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हम लोगों का मेन तो यही है कि आप जैसे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है उनसे एटलीस्ट जिनको आइडिया नहीं होता इंटरव्यू में जाने से पहले टॉप MNC से जितने भी MNC है तो एक आइडिया मिल जाए एटलीस्ट। तो ये मेन मोटो है हम लोग का इस सेशन का।
और यही IHS industry.com पे बात बेसिकली यही। और अगर आपको और कुछ शेयर करना हो टिप्स या पॉइंट्स स्टूडेंट्स के साथ। तो ऐसा था, मेरे केस में ऐसा था कि पहले से कुछ पता नहीं था, राइट? मतलब पहले से ज्यादा कुछ पता नहीं था। एवरीथिंग वाज ऑन द गो, सारा करते गए चलते गए। तो लाइक इफ यू गाइस आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स, दैट्स रियली ग्रेट। और फिर टिप्स के बारे में तो अगर आप लाइक द स्टूडेंट्स हु आर कंप्यूटर साइंस के, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आपका आईटी ब्रांच है, तो आपको कोडिंग करना पड़ता ही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आपको कोडिंग करके ही जाना पड़ता है। तो उसके लिए आप लीड कोड कर सकते हो। माय बेस्ट एडवाइस वुड बी आप लीड कोड ही करो, ठीक है? लीड कोड के मीडियम जो क्वेश्चंस होते हैं, डू इट एज मच एज यू कैन, आप जितना कर सकते हो। क्योंकि और एक वो जो होता है टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है, उनके सारे सेक्शंस बना लो। अमेज़न में काफी बार उसी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? पहला वो हो गया। दूसरा, अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपके जो भी कंपनीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका ड्रीम कंपनी अमेज़न है, या फिर आपका ड्रीम कंपनी जो भी है फ्लिपकार्ट है, या फिर स्विगी है फॉर एग्जांपल, ठीक है? अगर आपको स्विगी में प्लेसमेंट लेना है, आपको स्विगी का टेस्ट इंटरव्यू देना है, तो आप स्विगी का जो आर्काइव्स है, जीएफसी आर्काइव्स कर सकते हो आप सर्च, वो आपको लिंक मिल जाएंगे। आप उनके आर्काइव्स पे जाओ। स्टूडेंट्स जो हैं, जो प्लेसमेंट जिनका भी एक्सपीरियंस होता है, वो पोस्ट करते हैं वहाँ पे। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो। मैंने अभी तक का एक्सपीरियंस में मैंने ये भी देखा है कि काफी बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है? तो दैट इज रियली हेल्पफुल। तो आप गीक फॉर गिग्स का यूज कर सकते हो, लीड कोड से कोडिंग कर सकते हो। तो मैंने भी यही दोनों करे। तो दीज आर द टू वेबसाइट्स आई वुड लाइक टू रिकमेंड फॉर द स्टूडेंट्स। या और आप जैसा बोल रहे थे कि मीन्स जो सोर्सेस की जो लिंक है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग। हाँ, राइट। अगर आपको मेरा स्विगी का एक्सपीरियंस देखना, जानना है क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे कैसे राउंड्स थे, क्योंकि मैंने बोला भी आपको कि मेरे केस में उन्होंने सिस्टम डिजाइन के भी क्वेश्चंस पूछे थे। सिस्टम डिजाइन का जो बेसिक पार्ट होता है, एक कभी स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट में एक ये है कि वो एक नया राउंड वो करते हैं जिनको बोलते हैं मशीन कोडिंग राउंड। तो मशीन कोडिंग राउंड में वो बेसिकली आपका सिस्टम डिजाइन स्किल्स देखते हैं। मुझसे ये पूछा गया था, मुझे भी पहले नहीं पता था, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सिस्टम डिजाइन, पर फिर मुझसे पूछा गया तो मुझे मुझे पता चल गया था। मैंने भी वही आर्काइव्स देखे पहले क्या क्या पूछे गए थे, तो वहां से मुझे पता चला कि मशीन कोडिंग राउंड पूछा जाएगा, ठीक है? तो वो मैंने प्रैक्टिस कर ली इधर उधर से, जितने भी आर्टिकल्स मिले मुझे गूगल सर्च पे मैंने सारे कर लिए। एंड फॉर्चुनेटली, थैंकफुली मेरा वो परफॉर्मेंस अच्छा था। फॉर्चुनेटली मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे ना, एक दिन पहले सेम क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछा गया। दैट लकी आई वाज, ठीक है ना? तो आई नेल्ड इट, ठीक है? इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस। मैंने उनको अपना अप्रोच बताया, ठीक है? स्टैंडर्ड अप्रोच, पूरा जो बेस्ट अप्रोच होता है, मैंने उनको वो बताया। मैंने कोडिंग करके दिया उनको, दे वर रियली सेटिस्फाइड। और मशीन सिस्टम डिजाइन राउंड पे मेरे इंटरव्यू लेने के लिए आई थिंक 4 of them were there, 4 interviewers were there, 4 of them were there। तो सबके तो पैनलिस्ट वेर देयर, सबके बारी बारी से क्वेश्चंस आते थे। मैंने सबका मतलब जो भी क्वेश्चंस पूछे उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया, अपना अप्रोच बताया, सारी चीजें कोडिंग भी करी मैंने। तो सारा सही था। तो प्रैक्टिस करना होता है। तो आपको अगर वो सारे डिफरेंट क्वेश्चंस या फिर इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे जाने हैं, तो मैंने आर्टिकल लिख रखा है, आई विल प्रोवाइड दैट लिंक टू यू। और फिर उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, और you can even ask me personally. You can find me on LinkedIn or anywhere you can watch that. Okay, so I think we have covered all the important and useful experiences from you then. Yeah. So okay, then we can end this session, Roshan. Yeah, it was an amazing experience, rewinding the memories. Yeah, correct. It was a good experience. Yeah, thank you. I think this is your weekend also. Today is Sunday. Yeah. Yeah, today is Sunday, so yeah, weekend. Yeah. Okay, so very thank you for giving your precious time, right? And thank you to you. Wish you, as a petindustries.com, wish you a great success ahead in your future and career growth, right? So thank you then. Yeah, thank you. It was a great experience. Thank you. Yeah.